So, I am Karan Vasnani. I'm a speech language pathologist and audiologist. Currently, I'm running a center in which there is a child development center. Also, we run a audiology center along with it. So, it's a hearing, speech, and neuro rehabilitation center all together. व्हाट इज ऑटिज्म या फिर हाउ डू यू डिटेक्ट कि हमें जाना चाहिए एक डॉक्टर के पास में ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. व्हेन यू सी अ चाइल्ड विद ऑटिज्म यू से कि यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल है. 1.5 साल की उम्र में सडन रिग्रेशन आता है. जो भी बच्चा पहले पोएम गाने लगा था, सारी चीजें करने लगा था, अब वो चीजें वापस से बैक टू जीरो हो जाए. ऑटिज्म में यू गेट टू सी इज सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. दैट मीन्स द चाइल्ड विद ऑटिज्म डजंट लाइक टू mingle with the peer group, doesn't like to communicate, eye contact maintain नहीं करता. So communication doesn't mean कि सिर्फ verbal communication, even non-verbal communication affected होता है. हाउ डू यू वर्क ऑन फंबलिंग एंड क्लटरिंग एंड स्पीच थेरेपी So where you tend to get stuck while speaking, right? That is also named as stammering, right? And the another one is called cluttering. Cluttering is fast rate of speech. Is it like 650 per session is the cost for every therapy? For speech therapy and occupational therapy, these are the charges. 13,000 rupees for 20 session for speech therapy. Okay. If somebody wants just a single session, we charge 800 rupees for single. YouTube पे there is one guy, Instagram पे भी मैं नाम नहीं लेना चाहता. He's a very famous. He has got so much of views. Tells himself as a professional. Okay. And he hosts free camps into villages. Now he holds paid camps and all of that. अच्छा, आप अपने बच्चों को थेरेपी सेंटर पे लेके जाते हैं, फिर भी आपका बच्चा सही नहीं हुआ, इधर लेके आइए, अपने बच्चे को लेटाइए, अब अपने बच्चे के पीठ पे एस बनाइए. व्हाट यू आर वाचिंग, बी वेरी माइंडफुल. सो देयर इज वेरी गुड कंटेंट अराउंड ऑन द इंटरनेट, देयर इज वेरी misleading content on the internet. So make sure you don't get distracted into something which is not real. Welcome to Offbeat Conversations, Dr. Karan. And tell me, so this is what I wanted to know, कि how do you detect this in a child? Early signs क्या होते हैं to detect कि they need help from a specialist or they need therapies, child intervention therapies. So how do you detect? कैसे पता चलेगा? So before I start getting deep into this, I would like to introduce myself. So I am Karan Vasnani. I'm a speech language pathologist and audiologist. So currently I'm running a center. So in which there is a child development center. Also we run a audiology center along with it. So it's a hearing, speech and neuro rehabilitation center all together. So at my center, so we hold a multidisciplinary team. Okay, so we have a occupational therapist, speech therapist, psychologist, physiotherapist, special educators, audiologist, all together working for the betterment of the child and adults as well. Okay, so now I'll come to your question: ki how do you detect this problem? So it totally depends that what the problem child is having. So we come into the picture whenever the child has any kind of a developmental delay. Okay, so every particular domain has a milestone. So if I talk about speech and language, so there's a certain age a child develops or attains the first word, when the child speaks his first word, right? At the similar level, when you look at the physical development, there's a age when the child starts crawling, when the child starts developing neck control, and when the child starts walking without support, sitting without support. So there's a particular age at which the child should achieve that. And when that age is over and the child is not able to do a certain activity, that's when we call it that the child has a delay. And that's where we come in and we help the child to achieve those milestones. Okay, and what is that age? What is that certain age की for example इस एज तक बच्चे को बोलना आ जाना चाहिए, अगर नहीं बोल रहा है और वो एज जा चुकी है तो we'll consult someone who's speech therapist. Okay, so if I talk to you regarding the milestones,
So in the child starts babbling by the age of 5 to 8 months. What is babbling? Babbling जब बच्चा नॉन मीनिंगफुल साउंड्स निकालने लगता है, लाला बाबा काका ऐसी आवाजें निकालने लगता है, एंड ही ट्राइज टू कम्युनिकेट एंड प्लेज अराउंड विद द syllables. That is called babbling, right? And then comes jargon. Jargon is something which sounds like a speech बट इट्स नॉट एक्चुअली मीनिंगफुल. ठीक है, तो बच्चा काफ़ी सारे सिलेबल्स कंबाइन करके बोलने लगता है बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता. ठीक है, उसके बाद डेवलप होता है फर्स्ट वर्ड. दैट हैपन्स एट द एज ऑफ 1 year. सो जार्गन हैपन्स बिटवीन 9 to 12 months, एंड एट द एज ऑफ 1 year चाइल्ड अटेन्स इट्स फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड. चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा हो, कोई भी वर्ड जिसका कोई मतलब हो, तो वो अचीव होता है बाय द एज ऑफ 1 year. एंड देन इवेंचुअली बाय द एज ऑफ 2 year चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग इनटू phrases. And when the child turns to 3, child starts speaking to sentences, and then further on more complex sentences, right? So अगर बच्चा हमारे पास आता है, so the parents often come with us saying that कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है but अभी तक ये बोलता नहीं है ना? So that is the time we see patients कि so that is the time we come into the picture कि बोलना तो बच्चा 1 साल की उम्र में कर देना चाहिए था. अब क्या रीज़न है कि ये 2 साल की उम्र तक बोल नहीं सकता? दैट्स वेयर वी रन अ डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है या जस्ट आई वुड से डिलेड पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन. आजकल मदर एंड फादर दोनों वर्किंग हो गए हैं, बच्चे के साथ टाइम बिताने के लिए नहीं होता. तो बच्चा बोलना किससे सीखता है? वो अपने आसपास के लोगों से जब सुनता है तभी बोलना सीखता है. सो देयर इज अ बुक कॉल्ड 5 million words. ओके, सो इट सेज कि जब बच्चा 5 साल का होता है तब तक वो 5 करोड़ शब्द सुन चुका होता है. ओके ओके, सो जो बच्चा है वो सुनकर ही बोलना सीखता है, राइट? सो अगर पेरेंट्स इतना टाइम ही बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली लैंग्वेज डिले होगा. जो बच्चा काफ़ी एक्सप्रेसिव है, डेफिनेटली उसके साथ अच्छा उसको एक्सपोजर मिला है लैंग्वेज का. सो दिस इज़ द मेन रीज़न. एंड काफ़ी टाइम देर इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल रीजन्स एज वेल, जैसे कि बच्चे को ऑटिज्म हुआ या फिर ADHD हुआ. ऑटिज्म क्या होता है, लाइक फॉर अ लेमेन्स पर्सपेक्टिव, लाइक अगर आप उसको समझाओगे तो व्हाट इज़ ऑटिज्म, या फिर हाउ डू यू डिटेक्ट कि हमें जाना चाहिए एक डॉक्टर के पास में, माई चाइल्ड इज़ हैविंग सर्टेन साइंस की something is wrong. So I'll come to the red flag signs, है ना, कि क्या होते हैं ऑटिज्म के. बट ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें बच्चा इज व्हेन यू सी अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म यू से कि यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल है. सो चाइल्ड इज़ वेरी टिपिकली डेवलपिंग. जैसे उसके पेयर ग्रुप डेवलप करते हैं वैसे ही एक ऑटिस्टिक चाइल्ड डेवलप होता है, ठीक है. सो क्या होता है, 1.5 या 2 साल की उम्र में, है ना, बच्चा जो भी बोलने 1 साल में फर्स्ट वर्ड अचीव करने लग जाता है, उसके बाद बोलने लगता है. 1.5 साल की उम्र में सडन रिग्रेशन आता है ना. ऑफन यू सी इन टू ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, है ना, सडन रिग्रेशन आता है. जो भी बच्चा पहले पोएम गाने लगा था, सारी चीज़ें करने लगा था, अब वो चीज़ें वापस से बैक टू ज़ीरो हो जाती हैं, ठीक है. ये रिग्रेशन के साथ साथ ऑटिज्म में व्हाट यू गेट टू सी इज सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. दैट मीन्स द चाइल्ड विथ ऑटिज्म डजंट लाइक टू mingle with the peer group, doesn't like to communicate, eye contact maintain नहीं करता. So communication doesn't mean कि सिर्फ verbal communication, इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अफेक्टेड होता है. कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अगर आज कोई बच्चा है जिसको बोलना नहीं आता तो वो शायद पॉइंट करके बताएगा, है ना, कि ये चीज़ मुझे चाहिए, है ना. बट लॉट ऑफ टाइम इन ऑटिज्म चाइल्ड डजंट इवन लाइक टू पॉइंट. वो अपनी मम्मी का हाथ लेगा और उसको पॉइंट कराएगा. You're getting my point? Okay. So he doesn't like to communicate. And communication, जैसे if I talk about social communication क्या हुआ कि अगर suppose I came to your podcast, so you greeted me, you introduced me. So suppose if there is an autistic child, if a guest walks in, he doesn't mind. He doesn't even look into his eyes. He doesn't tell good morning, namaste, hi, hello. It doesn't matter. He's in his own world. Okay. Right? So social communication is highly impaired into autism. Then the child has some stereotypic behavior that you often see,
ओके. स्टीरियोटिपिक बिहेवियर का मतलब समझाऊं तो अनयूजुअल बिहेवियर, जो कि आपको एक नॉर्मल टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन में नहीं देखने को मिलते या कम देखने को जैसे मिलते कि हैं. लाइक व्हाट इज दैट? जैसे कि ऑटिस्टिक चाइल्ड लाइक्स टू बी वेरी repetitive. Okay, he likes to do same thing again and again. Okay, so if he's playing with a toy, so he likes to arrange them into the line, and then again he likes to throw them apart, and then again arranges that into a line, right? He keeps doing that activity again and again and again. कि मैंने कार ली, 5-10 कारों को एक साथ जमाया, फिर मैंने फेंका, फिर 5-10 कारों को जमाया, फिर फेंका, फिर 5-10 कारों को जमाया. So this is the repeated action that the child is doing, right? Okay. और इसके अलावा काफ़ी सारे रिपीटेड एक्शंस होते हैं, जैसे कि सपोज बच्चा ब्लॉक बिल्डिंग कर रहा है, वो बार बार ब्लॉक को बिल्ड करेगा, फेंकेगा, फिर ब्लॉक को बिल्ड करेगा, फिर फेंकेगा. ओके, सो बट ये तो गेम भी हो सकता है किसी के लिए कि यू नो दे आर एंजॉयिंग दिस. yes, that's where the parents usually get मतलब कि उनको कभी लगता नहीं है कि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ना, बिकॉज इट साउंड्स लाइक वेरी नॉर्मल, है ना, कि नॉर्मल टिपिकल डेवलपमेंट जैसा है. बट व्हाट इफ द चाइल्ड इज अगेन एंड अगेन सीइंग टूवर्ड्स द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे पंखे की तरफ सडनली देखते रहना बार बार यूं करके. सपोज कोई उससे बात कर रहा है बट ही इज एंजॉय लुकिंग एट द फैन. ओके, ही इज एंजॉयिंग लुकिंग एट द कॉर्नर ऑफ द वॉल्स. Okay, so this repeated action is also seen into autism, right? उनका एंकर पॉइंट होता होगा ना वो, जैसे उनका अगर सोशल एंजाइटी है, नहीं बात कर पा रहा है वो या कन्वे नहीं कर पा रहा है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से हटने के लिए या मेलोडाउन होने के लिए वो रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहा होगा. Yes, very right, है ना. So what you told right now is कि बच्चा इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो शायद वो चीज़ कर रहा है. सो दीज आर ऑफन लेबल्ड एज मेल्टडाउन बिहेवियर, कि बच्चा मेल्टडाउन बिहेवियर कर रहा है ना, कि मेल्टडाउन बिहेवियर एक्चुअली रिपीटेड एक्टिविटी नहीं होता. मेल्टडाउन बिहेवियर होता है ही स्टार्ट्स जंपिंग, राइट, ही स्टार्ट्स जंपिंग बैक टू बैक, खड़े खड़े जंप करना है. ओके, ही स्टार्ट्स मे बी बाइटिंग हिज हैंड. ओके, दैट्स हेल्प हिम काम डाउन, राइट. तो वो अपने हाथ को पूरा बाइट करेगा and he likes to bite his hand. That helps him calm down, that helps him to regulate his body, right? तो everybody has their own way to regulate it. ठीक है, अगर मैं नर्वस हूँ तो शायद मैं नाखून खाता हूँ, that is my way to regulate myself, right? So when this regulating yourself becomes when you override it, right, basically it becomes too much. That's where you see कि it is turning into autism. Right. एक क्वेश्चन और है इस पे. एक्चुअली मैंने ना एक सीरीज देखी थी इस पे, मैं गलत हो सकता हूँ, पर मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि बेसिकली अपनी फीलिंग्स भी कन्वे प्रॉपर वे में कर नहीं पाते हैं. लाइक वॉट एवर दे आर फीलिंग, अगर उनको गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ और इमोशन आ रहा है तो उस इमोशन को सेम वे में बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं. अगर मेरे को मतलब उसको है ऑटिज्म तो बता नहीं पाएगा कि मेरे को भी गुस्सा आ रहा है या मेरे को भी प्यार आ रहा है या मेरे को कुछ भी आ रहा है. सो एज आई टोल्ड, इट्स अ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, है ना. तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल वैलिड है और ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है. इवन द चाइल्ड डजंट शो लव टूवर्ड्स द पेरेंट्स. ठीक है, आज छोटा 3 साल का बच्चा है, इफ़ द मॉम एंड डैड हैव गॉन टू वर्क एंड दे कम बैक, वो सीधा आके गले लगता है, गोदी में बैठता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट ही डजंट माइंड, ही इज़ इन हिज ओन स्पेस. उसको फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी आ रही है पापा आ रहे हैं, ही डजंट लाइक टू शो लव, right? So even though he loves them, but he cannot express it, right? So that is something you get to see into autistic children. अर्ली एज में इनके साथ मतलब डील करना, उनको बताना, आप एक सर्टेन एज अचीव कर लेते हो, जैसे हम 18 के हो गए, 15-16 के आसपास एक डील करना आसान होता है, पर 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको समझाना या एक्सरसाइज बताना है, उसको बोलना कि इमोशन ये होते हैं या वो होते हैं, वो हार्ड होता होगा. मतलब आपके पास अगर कोई आ रहा है अभी तो इट्स वेरी हार्ड ना, अर्ली एज के अंदर इंटरवेंशन. Very true. So what we are looking as autism is what maybe everybody around considering themselves as autism, ADHD is completely different compared to those who actually have it, right? तो आजकल बीच में इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड चला था, हर जना बोलता है मेरे को ADHD है, मेरे को ऑटिज्म है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. So when you really look into a life of a parent or a child who has autism, you get to see ki how difficult it is for them to manage it, right? Because society is not accepting them the way they are, right? So
अगर मैं सपोज करो कि एक रोड पे जाता हूँ एंड रोड पे आई लुक एट द वॉल एंड आई सी कि उस पर आइसक्रीम की फ़ोटो बनी है एंड आई स्टार्ट लिकिंग दैट वॉल. Okay, and this is the scenario that we have seen with the children who come at our center, right? So the parents came कि सर ये तो दीवार जाके दीवार चाटने लग गया था just because he wanted that ice cream, right? There was a case कि suppose they have a fear of height as well, right? A lot of time they have gravitational insecurity, so they have a fear of height, so they don't like to sit on the potty seat. Okay. So a lot of time the toilet control is not achieved. सो पेरेंट्स आर सेइंग कि मेरा बच्चा 6 साल का हो गया पर ये अभी भी डायपर में ही पॉटी करता है, राइट? जस्ट बिकॉज ही डजंट लाइक टू सिट ऑन द पॉट. द ओनली रीजन इज ही डजंट लाइक टू सिट ऑन द पॉट. दैट्स वाई ही डजंट लाइक टू go to the washroom, right? So the real scenario is completely different. So when I was in Bangalore, I was seeing a patient with autism and I was taking speech therapy for that child, and I am seeing कि यार 2 दिन अच्छे से आया बच्चा कमरे के अंदर थेरेपी के लिए, तीसरे दिन ही इज नॉट विलिंग टू गेट इन टू द रूम, कि आना ही नहीं चाहता, वो रोए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, स्क्रीमिंग, इज रोलिंग ऑन द फ्लोर एंड इज नॉट रेडी टू कम इनसाइड द रूम. मैंने बोला ऐसा क्या हो गया, है ना? वी ट्राइड अ लॉट, देन दे फाइनली लेफ्ट, दे केम द अदर डे एंड दूसरे दिन भी वो लॉबी से ही रोना चालू हो गया. एंड देन वी फाइंड आउट कि देर वॉज अ स्मॉल वॉल फैन दैट वॉज ऑन फॉर द 2 days. तो वो जो वॉल फैन की जो साउंड थी, इट वॉज सो ट्रॉमेटाइजिंग फॉर दैट चाइल्ड कि वो उसके कारण अंदर नहीं आ रहा था. So small sound and a small trigger point can affect their whole day so much that you can't even imagine. Now suppose you are sitting over there and I am there's continuously flashing light in front of your eyes. Okay, I'm taking a flashlight and continuously flashing it in front of your eyes, and somebody is screaming into your ears. Can you continue this podcast? In a minute you will be fed up कि भाई बंद कर ये सब, है ना? एंड दिस हैपन्स टू देम डे टू डे, एवरी डे. अ शॉर्ट सेंसरी ट्रिगर कैन अफेक्ट देयर होल डे. ओके, सो दे हैव sensory issues. So what is their sensory issues? They're not able to regulate their senses. Okay, so suppose this light is something which is going to be annoying for me कि ये मेरे मुंह पे आ रही है. Suppose I'm just giving an example, but for an autistic child this could be something which helps him calm down. He's enjoying this light, okay? Whereas there is another autistic child who cannot even take this light and he's always sitting like this, right? वो हमेशा ऐसे ही बैठा हुआ है कि नहीं, मेरे को ये लाइट नहीं चाहिए. Okay, so this is the sense I'm talking in terms of vision, right? Similarly auditory senses, है ना? कई बच्चे hyper sensitive होते हैं, कई hypo sensitive होते हैं. थोड़ी सी अगर मिक्सी में आवाज़ भी तेज हो जाए तो बच्चा कान बंद कर लेता है. ओके, कोने में जाके बैठ जाता है. घर में मिक्सी चली, वॉशिंग मशीन चली, ही इज सिटिंग इन द रूम इन द कॉर्नर नेक्स्ट टू द बेड, फोल्डिंग हिज लेग्स एंड ही इज शिवरिंग लाइक दिस कि ये क्या है. ओके, एंड पूरा घर परेशान है, ऐसा कर क्यों रहा है? नोबडी नोज दिस इज बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ द मिक्सर, राइट? तो when this happens into the society, suppose when you are going to a room and suddenly they start playing music, and somebody who just walks out and he's not able to control himself, you'll be like, you start judging that person ki ye kya hai, right? So society is also not ready exactly, and they don't know what exactly is happening to them. Why are they doing like this, right? So they're not able to regulate their senses. Due to that, they come with sensory issues, right? But like if it is ये बिल्कुल childhood में हो रहा है, right? So what are, there must be some external factors which is affecting the child, या फिर it is just internally they are born like that, and like what's the situation, how do you know कि क्या factors उसे affect कर रहे हैं? Also like if everything is different for every patient, then how do you recognize कि इस child को हमें इस तरीके से ट्रीट करना है, थेरेपीज देनी है, और दूसरा जो है जिसको भी ऑटिज्म है उसको हमें दूसरे तरीके से हैंडल करना है उस केस को, Right, so how do you know that? So I have never seen two autistic children similar, right? So I have seen कि एक बच्चा है, उसको आवाज़ से बहुत परेशानी हो रही है, छोटी छोटी आवाज़ों से.
whereas I've seen the other child who enjoys that sound, right? Similarly, I have seen कि एक बच्चा है उसको लाइट्स इतनी ज़्यादा मज़े आते हैं कि एब्जॉर्ब्स द लाइट्स, एब्जॉर्ब्स इन द सेंस कि वो लाइट के पास जाएगा एंड कंटिन्यूसली उसकी तरफ देखेगा एंड ही इज़ ओनली वॉचिंग द लाइट्स व्हेनेवर ही इज एंटरिंग इनटू द रूम, हिज फोकस इज ओनली टुवर्ड्स द लाइट, राइट? एंड वेयर इज द अदर चाइल्ड, ही डजंट एंटरटेन लाइट्स, राइट? उसको डार्क पसंद है. सो टू फाइंड आउट कि बच्चे पे किस चीज़ पे काम करना है, सम चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म आर इवन वर्बल. ओके, सो लॉट ऑफ टाइम यू सी कि यार वो एक जना है, ही हैज बीन सो सक्सेसफुल एंड ही वाज ऑटिस्टिक. ओके, सो लॉट ऑफ टाइम द ऑटिस्टिक child are completely verbal and they have very good IQ as well, right? So they do wonderful in their life, right? But they still have some struggles in their life, but yeah, they are able to regulate themselves and they are really good. Okay, so autism also has severity: mild, moderate, severe, moderately severe, and in that every domain is specific, not something which is general, right? So we run a detailed comprehensive assessment depending कि अगर ये बच्चा है, so is he non-verbal, is he verbal? अगर verbal है तो इसकी vocabulary कितनी है, इसकी language age कितनी है. If the child has sensory issues, is he auditory inhibitor or is he auditory seeker? Is he vestibular seeker या inhibitor है, या visual seeker है या visual inhibitor है? ठीक है, तो क्या उसको visually वो attract होता है या वो deny करता है? So ये सारी चीज़ें check होती हैं by different professionals. So senses are checked by usually occupational therapist, speech and language is taken care by speech therapist, and anything related to behavior, lot of time the behavior is not appropriate. The child, I told, the child starts biting, hit his head on the floor, on the wall, और ये सारी चीज़ें होती हैं. स्टार्ट स्क्रीमिंग इन टू द पब्लिक, स्टार्ट्स लाफिंग अननेसेसरीली. आज अपने साथ बैठा है वो आपका चेहरा देख के हंसे ही जा रहा है फॉर नो रीज़न, राइट? सो lot of times the behavioral modification therapist comes into the picture. So we have a complete team of rehabilitation who work together, make a plan and decide कि आज हमें किस गोल पे काम करना है. And then collaboratively they work on a similar goal to achieve that goal. And once that goal is achieved, we move on to the next step. बट इट इज़ वेरी इजी ना, अगर कोई चाइल्ड उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो अपना सर दीवार में दे रहा है या फिर वो रैंडमली हंस रहा है, तो लाइक इफ़ पेरेंट्स आर नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस, तो वो सोचेंगे कि यार कुछ प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, या फिर पागल तो नहीं है, सोसाइटी पागल बोल देगी. सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट द पेरेंट्स, लाइक इफ यू टॉक अबाउट पेरेंट्स, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि पेरेंट्स अवेयर हों उस चीज़ को लेके? एंड बिकॉज इट इज़, आई थिंक Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में फिर भी लोग अवेयर रहते हैं, पेरेंट्स अवेयर रहते हैं, बट लाइक इफ़ यू सी Tier 3 में तो लोग बहुत आसानी से बोल देंगे पागल है ये, या इसके तो कुछ जादू हो गया कि बच्चा, मतलब काला जादू हो गया कि बच्चा ऐसा पैदा हुआ है, यू नो. Yes, so many notions. that happens. So how do you make sure that you aware parents? So first step is definitely awareness. The second step is early intervention. तो जब ये पागल वर्ड टर्म होता है, उसी से पहले ही हम अगर बच्चे को राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट दें, देन वी आर एबल टू रेगुलेट द चाइल्ड मच बेटर, राइट? वो बिहेवियर आने ही नहीं देते हम अगर हम उसको राइट एज पे डिटेक्ट कर लेते हैं. तो वाई डज अ चाइल्ड डेवलप सच काइंड ऑफ अ बिहेवियर? सो सपोज अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू टेल कि मुझे टॉयलेट जाना है, या मेरे पेट में दर्द है, या मुझे ये खाना है, and the child is not able to express, doesn't have a language, right? वो कैसे बताएगा कि मुझे क्या खाना है? सपोज he wants to eat pizza, है ना, और वो फोटो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, बट वो बता नहीं पा रहा, तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा. एट द एंड दैट टर्न्स इनटू बिहेवियर. वो चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, अपना सर मारेगा, सारी चीज़ें करेगी. दैट लीड्स टू बिहेवियर प्रॉब्लम, राइट? तो अगर इस चीज़ को राइट एज पे डिटेक्ट किया जाए, देन द सिम्टम्स आर वेरी लो, एंड what do you say, the treatment effectiveness of the therapies, the effectiveness of treatment becomes way higher compared when the child comes at the later age. So if a child comes at the age of 8 years with severe autism, I have a very less role to play in, right? And if a child comes at the age of 1.5 years saying that my child has autism, or comes with a complaint of certain things, and then we diagnose that the child has autism, then our role is way higher and the prognosis is much better. So that is the way. But if you are talking about what would be the signs that the parents should understand कि क्या है जिनको देखकर उनको
पता करना चाहिए कि शायद मेरे बच्चे में कोई दिक्कत है. सो इफ़ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑटिज्म, डेफिनेटली नेम कॉल रिस्पॉन्स इज़ वन ऑफ इट. सो स्पेशली इन ऑटिज्म यू डोंट सी नेम कॉल रिस्पॉन्स. तो जब भी आप बच्चे का नाम बुलाओगे वो पलट के नहीं देखता. ठीक है. सो माँ बाप वो अपने काम में लगा हुआ है, रिपीटेड एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो अपनी धुन में है, माँ बाप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि नाम नाम बोल रहे हैं, बट ही इज़ नॉट इवन टर्निंग हिज हेड, और मे बी once or twice out of 10 times he turns his head, right? So poor, very poor name call response, which is often misleaded by hearing loss. शायद सुनता नहीं होगा बच्चा, शायद सुनता नहीं होगा, ये डाउट होता है पेरेंट्स को, इसलिए ये बोलता भी नहीं है. बट ऑफन द साइन इज कि नेम कॉल रिस्पॉन्स ही इतना पुअर है बच्चे में कि वो पलटता ही नहीं है. दैट इज द साइन ऑफ ऑटिज्म. सेकेंड साइन ऑफ ऑटिज्म इज इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ स्टीरियोटिपिक बिहेवियर, कि आपका बच्चा फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स करता है, ही कीप्स डूइंग दिस दिस दिस, और ही keeps watching at the staring at the corner of the walls, he keeps watching at the moving objects. Suppose गाड़ियों के टायर की तरफ बार बार उसे देखना पसंद है, या फैन की तरफ बार बार देखना पसंद है. सो एनी काइंड ऑफ रिपीटेड एक्टिविटीज़, एक टॉय है उसको फेंकना, वापस से लेके आना, फिर फेंकना, वापस से लेके आना, फिर फेंकना. सो दिस काइंड ऑफ रिपीटेड एक्टिविटीज़. I had a parent. So parent has such poor acceptance. पेरेंट्स, लॉट ऑफ पेरेंट्स दे कम, उनको मानना ही नहीं है उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है. सो लॉट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज टू बी ऑन दिस साइड एंड टेल देम कि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है. फर्स्ट थिंग, वी कैन नॉट टेल देम दैट देयर चाइल्ड हैज़ ऑटिज्म, अदरवाइज इट completely change their vision towards us, and वो भी they get shattered and things like that. So there is a very different way you put it in front of them. So when we tell them कि सर ये जो ऐसे लाइनों में जोड़ रहा है, तो ये when we ask them कि बच्चा लाइनों में जमा करता है क्या, so one parent was like very good family though, है ना, सर आपको क्या बताऊं, इसका IQ तो इतना ज़्यादा है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, मेरी गाड़ी में एस्ट्रे पड़ी रहती है, उसके वो सारे बर्ड्स निकालता है और लाइन से जमाता है. ओके, सो दे कंसिडर इट एज कि IQ इतना अच्छा है कि वो उसको एक एक करके लाइन से जमाता है. ठीक है. बट वेन वी आस्क द क्वेश्चन, वी हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि किस लिए हम वो पूछ रहे हैं. सो लॉट ऑफ टाइम पेरेंट्स टेल कि नहीं ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी, बिकॉज उनको वो लेबल नहीं चाहिए, उनको कोई भी ये नहीं सुनना है कि मेरे बच्चे में कोई दिक्कत है. So lot of time there's a denial, they don't accept that their child has a problem, and when the things get worse कि यार अब बच्चा 4 साल का हो गया, अब इसको घर के बाहर ले जाना मुश्किल हो रहा है, society is not accepting it, school is denying to get him admission in the school. So अब क्या करें, हम कहीं बाहर मॉल नहीं ले जा सकते इसको, मॉल में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है पूरा कि ये क्या हो रहा है, बच्चा है क्या है. सो अब क्या करें, दैट्स व्हेन दे टेक टू द थेरेपिस्ट एंड दैट्स व्हेन दे एक्सेप्ट कि नहीं इसको कुछ तो प्रॉब्लम है अभी, अब इतनी वर्स हो गई है सिचुएशन. बट जब चीज़ें माइल्ड थी, व्हेन समबडी वाज काउंसलिंग देम, दे डिडंट अंडरस्टैंड कि इससे कुछ हो सकता है ना. एंड लॉट ऑफ टाइम्स द पेरेंट्स इवन स्टार्ट टेकिंग थेरेपीज एंड दे से कि थेरेपीज इज नॉट समथिंग कि हम कोई जादू कर रहे हैं उनके साथ, राइट. We have a certain evidence based practice that we follow which will eventually eliminate such behavior or pattern of behavior, right. तो जब हम वो करते हैं, so it is very difficult to tackle with a child. So you told कि यार बड़े को तो बताना बहुत आसान है, बच्चे को तुम कैसे बनाते हो. तो अगर बच्चे को हम कुछ भी बताएंगे, so imagine you need to become a child when you talk to a 3-year-old. You need to become a 3-year-old, right. अगर मैं उसको बच्चे को बोलूँगा ये कप उठा के वहाँ पे रख दे, वो नहीं रखेगा, right. You need to have that kind of a child based language. The mother is the child को, बच्चे को लगना चाहिए कि मेरे साथ कोई मेरा अपना है. So rapport building में ही 3-4 दिन लगते हैं, and then you have to create that play behavior. So everything happens in the basis of play therapy, right. So पेरेंट्स को कई बार लगता है यार ये तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं घर पे, है ना. इन द फर्स्ट फ्यू सेशंस व्हेन दे स्टार्ट कि यार ये तो गेम्स ही तो खेल रहे हैं बच्चों के साथ, ये तो हम भी कर सकते हैं. एंड देन दे इवेंचुअली लाइक कि नहीं यार हम खुद ही करा लेंगे, इधर रोज लेके भी आना है, 2 घंटे भी लगाने हैं, पैसा भी लगाना है. एंड व्हेन द थिंग्स स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ देयर हैंड्स, देन दे अगेन कम बैक आफ्टर अ सर्टेन एज, जब काफ़ी देर हो चुकी होती है. एंड देन वी हैव वेरी लेस रोल टू प्ले इन. मेरे को बेसिकली जानना है, जैसे आपने कहा ना कि पेरेंट्स को बताना, कन्वे करना, डायरेक्टली हम बोल नहीं सकते कि उसको ये है प्रॉब्लम, तो एक कितनी डेलिकेट सिचुएशन बन जाती है. आप उसको एक अलग वे में डील कर रहे हो, अब जब आपके पास थेरेपी पे आ रहा है, अगर वहीं वो घर पे जाता है और उसके साथ वो बिहेवियर डिफरेंट वे में हो रहा है, जैसे आपने बोला कि वो
वहाँ पे पॉटी नहीं कर पा रहा है, सीट पे नहीं बैठ पा रहा है बिकॉज उसको डर है। तो अब अगर घर वाले हों, उनको नहीं समझ आ रहा है कि इसको डर है इस चीज़ का, पर लेकिन वो उसको पोक कर रहे हैं कि आप बैठना चाहिए, नॉर्मल है, बैठ वहाँ पे, ये कर वहाँ पे। तो अब ये सिचुएशन से डील कैसे करोगे आप एक अलग वे में डील कर रहे हो, आप उनको बता भी नहीं सकते कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, बिकॉज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं है पॉसिबल, यहाँ पे लोग इतने अवेयर नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ फिर ठीक कैसे हो रही होगी? आप यहाँ ये कर रहे हो, वो वहाँ पे उसको समझ नहीं पा रहे, तो बेसिकली आपको सबके साथ डील करना पड़ रहा है ना, नॉट विद द चाइल्ड ओनली। Yes, yes. We need to work with the family together. पेरेंट्स को अवेयरनेस करने वाली चीज होगी ना वहाँ पे कि So we put it. We don't say कि we are not telling them कि हम ये नहीं कर रहे कि हम उनको बता ही नहीं रहे. हम बहुत कुछ सब कुछ ही बता देते हैं, but in a very soft manner. Instead of telling कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, इवेंचुअली उनको पता पड़ना ही है 4-5-10 दिन में, तो उनको बात ये सामने आनी ही है, और हम प्रॉपर रिपोर्ट देते ही हैं, फॉर्मल रिपोर्ट जिसमें डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है सामने, है ना, दे कैन गो एंड रीड अबाउट इट, बट काउंसलिंग देम कि ऑटिज्म इज ओके, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट दैट योर चाइल्ड हैज ऑटिज्म. What you need to know and what you should do now, that is the thing that we focus on कि यार it's okay, it's nothing bad, he is completely normal. आप देखो, इस चलता नॉर्मल है, बात नॉर्मल कर रहा है, देखना नॉर्मल है, जैसे आपके 2 आँखें हैं, इसकी भी 2 आँखें हैं, सब चीज़ तो नॉर्मल है, everything is normal. So that is where we take the picture and slowly tell them कि ये डिले हो जाता है, ये प्रॉब्लम आती है, ये ऐसे करना है, अगर हम इसको अभी से सही कर लेंगे देन वी आर एबल टू पुट हिम इनटू नॉर्मल स्कूल and we'll be able to develop the language into the child. So we often don't give false expectation. A lot of time there are severe autistic children, so autism depends कि यार उसका treatment depend करता है कि क्या severity पे है, IQ क्या है बच्चे का, इस पे भी बहुत matter करता है. So lot of time कि parents were like कि सही तो हो जाएगा ना मेरा बच्चा, सही तो हो जाएगा, क्या वो normal life तो जी लेगा ना. So it becomes very difficult to tell it on the face कि यार नहीं हो पाएगा आपका बच्चा ठीक, या आपका बच्चा हमेशा उसको किसी का सपोर्ट की ज़रूरत होगी थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना. सो इन दैट वे वी डोंट वांट टू गिव देम फॉल्स एक्सपेक्टेशन ऑल्सो कि यार नहीं सब सही है, सब सही हो जाएगा, आप तो सब जो जैसे हम बता रहे हैं वैसे करो. एट द सेम मैनर वी हैव टू टेल देम कि अगर सीवियर है तो अगर हम सब मिलके मेहनत करेंगे तो शायद ये माइल्ड हो जाएगा, और शायद ये अपने आप को अपनी लाइफ को खुद से कैरी ऑन कर पाए. जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि एक पेरेंट थे जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे का आईक्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना. तो अगर पेरेंट ऑलरेडी उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये तो अच्छा है, पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं उसको, तो व्हाई वुड दे विजिट अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस? वो रीज़न क्या रहेगा फिर? So the first visit usually happens in such cases is the primary visit happens. So a lot of time if the parents are not so aware कि क्या दिक्कत है, so primary problem के साथ वो pediatrician के पास विजिट करते हैं कि सर मेरा बच्चा 2.5 साल का हो गया पर अभी भी बोलता नहीं है. Okay, so that's where a pediatrician refers to a speech language pathologist or occupational therapist or a child development center कि run a detailed evaluation on this child and find out what is the exact problem behind it, why is the child not speaking, and then we run a detailed assessment and then we find out कि नहीं इसके पीछे कई तो नहीं बोलने के कई रीज़न हो सकते हैं. अगर बच्चा सुन नहीं रहा है, if the child is deaf, that also means the child is not able to speak, right? तो अगर बच्चा बोल नहीं रहा है then we run an assessment and we find out multiple behavior patterns of behavior. We have evidence based materials, we have diagnostic test tools. So for autism we have MChat to diagnose autism, we have DSM-5. There are various test materials that we use, standardized test materials which help us to diagnose that the child has autism. Okay. And what are the early signs कि हमें ऐसा लग रहा है, फॉर एग्जांपल बच्चा है 2-3 साल का बच्चा है, वो तो उसका कोई बिहेवियर सेट नहीं होता, राइट? मतलब बिहेवियर पैटर्न सबके डिफरेंट होते हैं. सो हाउ डू यू नो कि दिस चाइल्ड हैज़ अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू केटर दैट एंड दिस चाइल्ड इज नॉर्मल? हाउ डू यू नो दैट? लाइक व्हाट इज द प्रोसेस? मतलब आई डिडंट गेट यू. एज इन फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको ब्लॉक्स वो बना रहे हैं और फिर उसको वापस से हटा रहे हैं, फिर ब्लॉक्स बना रहे हैं, बट दिस कैन बी अ नॉर्मल पैटर्न एज वेल. So I told you what you need to look at, the key markers, what you need to look at कि बच्चा सब कुछ नॉर्मल करता था, 1.5 साल में सडनली रुक गया,
रिग्रेशन तो नहीं आया मेरे बच्चे में, सब कुछ नॉर्मल डेवलपमेंट था, टिपिकली डेवलपमेंट था, पोएम भी बोलता था, सब कुछ बोलता था, अब सब बोलना बंद हो गया, एक दिन में सडन जीरो हो गया, रिग्रेशन आया। पुअर नेम कॉल रिस्पॉन्स, कि बच्चे का नाम बुलाते हैं पलट कर नहीं देखता है, ठीक है। स्टीरियोटिपिक बिहेवियर, स्टेयरिंग एट द कॉर्नर ऑफ द वॉल्स, लुकिंग टुवर्ड्स द लाइट्स, अनयूजुअल हैंड मूवमेंट्स, टैपिंग ऑफ लेग्स, hitting himself, all these kind of things can be an early sign when you are looking towards autism, right? So And basically, communication is definitely one. The child doesn't like to socially communicate, right? Eye contact, very poor eye contact. When you talk to an autistic child, he'll never give you an eye to eye contact. Even the child has no eye to object also eye contact. Eye to object yani, agar if I'm talking about this cup of tea, right? So all of you will be looking at this cup of tea. But when you talk to an autistic child, he's looking at the corner of the wall when you're talking about cup of tea. When you take your child to the zoo, you're showing, look, there's a zebra over there. Look, there is a lion over there. He doesn't care. He's into his own world. He doesn't want to look. Even though you're pointing and showing him कि ये है, you are talking to him, he'll never look into your eyes, he'll look down, and even though he's verbal, वो बोल सकता है, but वो नीचे देख के, साइड में देख के बात कर रहा है आपसे, he's now not looking, very poor eye contact. So आजकल, पहले ऑटिज्म को डायग्नोस करने के लिए मिनिमम एज थी 3 years. Nowadays we are looking at 6 months, as early as 6 months. Imagine a child whose speech gets developed, language gets developed at the age of 1 year. Child starts speaking first word. बट वी आर लुकिंग एट द अर्ली साइंस, नेम कॉल रिस्पॉन्स. 6 महीने का बच्चे को आवाज़ देते हैं तो वो अपनी आई कॉन्टैक्ट इधर से उधर करता है, अपना हेड टर्न करता है, देखता है, ठीक है. बट इफ अ 6 month चाइल्ड डजंट हैव अ name call response, if the child is not giving you eye contact, if the child is not showing you the feeling of love, right, तो ये सारी चीज़ें अर्ली स्टेजेस हैं टू फाइंड आउट. आपने जैसे उनको ट्रीट किया, अर्ली पता चल गया पहले ही किसको ये प्रॉब्लम है, तो पॉसिबल है वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सके फिर, या फिर उसको फिर भी कहीं ना कहीं एक अलग स्पेस में रखना पड़ेगा कि वो बुली ना हो, या फिर लोग उसको उस चीज़ को लेकर के कुछ कहें ना. लाइक थेरेपी हो गई है, थेरेपी इज़ डन नाउ, वो बात कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, बट स्टिल ही इज़ डेलिकेट और नॉट, वो अपने मतलब उन चीज़ से डील कर सकता है कि नहीं कर सकता. इसी लाइक आई वांट टू ऐड ऑन टू दिस ओनली कि लाइक हाउ डू यू नो कि हम क्योर कर देंगे, बिकॉज देयर इज नो सेट पैटर्न कि हम इतने टाइम में कर देंगे, देयर इज नो टाइम लिमिट कि इतने टाइम में हम थेरेपीज लेंगे तो हो सकता है कुछ चेंजेस पता चले. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? सो हाउ डू यू नो दैट द थेरेपीज आर वर्किंग ऑन देम, या फिर इफ दे आर नॉट? So, how to track the progress of the child? We have progress trackers. We give progress reports. We often speak to the parents. We have certain goals, milestones that we are working on. If that is achieved, we make a progress report. Then now we need to move on to the next step. That comes as a progress tracker, right? A point hai, will the child be able to live by himself, or be able to get along with the society? This is a question, this answer to this is quite difficult, okay, because as I told you, every child is different, right? So how it is different, कुछ जनों को तो बहुत कम प्रॉब्लम है, whereas कुछ जनों को बहुत सीवियर प्रॉब्लम है. So certain children have lot of temper tantrums, or maybe lot of behavioral issues. They have lot of sensory issues. They are completely non-verbal, है ना, टॉयलेट कंट्रोल अचीव नहीं है, IQ बहुत पुअर है. सो इन दोज केसेस आवर एजेंडा इज नॉट कम्प्लीटली कि यार इसको बिल्कुल टिपिकली डेवलपिंग एज तक लेकर आ जाना है. वी नो दैट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट ईजी टू गेट हिम टू दैट, एंड मे बी he might not be able to get to that milestone, right? But how much we can bring him so that society is able to accept him, that is our target goal, theek hai. I am not sure that every child is able to reach to that, but if the IQ is good, definitely we are able to achieve that, right? And like what how can a parent, for example, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है पैम्पर्ड ओके, तो हमें ऐसा लग रहा है कि टेंट्रम्स हैं उसके, राइट? सो लाइक व्हाट आर द थिंग्स पेरेंट्स डू यूजुअली, कि जैसे वी हैव सीन कि अभी रिसेंटली पेरेंटिंग में बच्चों को आईपैड दे देते हैं खाना खिलाने के लिए, या फिर है ना जो भी चीज़ें आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, तो हाउ डज दैट इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड्स overall holistic approach? And okay, now we are talking about regular children, not only right. So yeah, so
parenting is one of the difficult part. This becomes a very difficult part from our side कि how do we counsel them on parenting, right? But सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है is that screen time, right? The child's screen time nowadays is so high that all the developmental delays that we see mostly are due to screen time, right? So अगर बच्चे की speech and language developed नहीं है and then we come across to a parent कि आप कितना time spend करते हो, अरे हमें तो time मिलता नहीं है, हम दोनों ऑफिस जाते हैं, और even if the mother is homemaker, मैं तो अपने काम में लग जाती हूँ, दूसरा बच्चा भी होता है, उसको भी संभालना होता है, ये अपना फ़ोन चलाते रहता है, ठीक है. So screen time is sometimes so bad that it is indirectly affecting your child and you don't even know, but parents say कि मेरा बच्चा तो स्मार्ट बन रहा है स्क्रीन से, है ना. अगेन द क्वेश्चन कम्स कि मेरा बच्चा तो बहुत स्मार्ट बन रहा है स्क्रीन से, क्यों? देखो हम इस उम्र में भी ये फीचर यूज नहीं कर पाते, क्या बढ़िया फोन चलाता है, ठीक है. आप देखो ये अभी आपको सेटिंग्स करके ये सब कुछ करके दे देगा, बट उसकी लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज इज सो पुअर, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कमांड्स, he is not able to express verbally nicely. Lot of time a 3-year-old child comes कि यार a single word ये सिर्फ 4-5 शब्द ही बोलता है, अभी तक 3 साल का है, and then we ask screen time क्या है, कम से कम 6 से 7 घंटे तो ये घर में चला ही लेता है, फ़ोन टीवी सब मिला के. 6 to 7 hours per day when you're talking to a 3-year-old child, it's a huge thing when you are talking about screen time. 6 to 7 hours in a day, right? So एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि बच्चा सीखता कहाँ से है बोलना. सो बच्चा सीखता है पेरेंट्स से या नियर बाय whoever is talking, he grasps that and he starts implementing in his own life. So what happens when there is a screen time? Screen time is not bad, I'm not telling you screen time is bad, but leaving a child alone with the screen is definitely bad, right? तो अब बच्चा 2 साल का है, आप स्क्रीन दे रहे हो उसको, नो डाउट ही इज़ लिसनिंग टू गुड पोएम्स, ही इज़ लिसनिंग टू पीपल टॉकिंग, बट स्क्रीन उसको कभी मौका नहीं दे रहा बोलने का. स्क्रीन नहीं बोल रहा कि अब मैं चुप हो गया अब तुम बोलो, राइट? सो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन कभी भी स्क्रीन से नहीं हो रहा है. सो वन वे कम्युनिकेशन तो हो रहा है, बच्चा समझ तो रहा है सारी चीज़ें, बट उसको बोलना तो आ ही नहीं रहा, बोलने का मौका तो दे ही नहीं रहा फ़ोन कभी. Okay. And is this the reason जब वो बच्चा बड़ा होता है तो they become shy, they don't want to talk and communicate with people? Yes, definitely. Okay. So when they're not exposed to the real world, definitely they don't understand the real life situations so well, right? So the more the screen time at the I'm not saying that screen time is bad. If you have a collaborative screen time with a family, when all of you are sitting together as a mom, dad, son and child, and you are watching it together, definitely that's okay. But if the child is sitting alone at the age of 2 years or 3 years, 5 years, 5 hours the child is having screen into his hand, that is completely worse, right, on his overall development. बिहेवियर में एक्सट्रीम चेंजेस भी देखे हैं कुछ बच्चों में, मतलब अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो अग्रेसिव होना. यस. तो ये भी बेसिकली कैसे, मतलब कभी समझ नहीं पाया इस चीज़ को, क्यों वो इतना अग्रेसिव हो रहा है. अगर वो नॉर्मल ही चीज़ें देख रहा है, अगर अपन 3-4 साल का बच्चा वो नॉर्मल चीज़ें ही देख रहा है, उसने कुछ अग्रेसिव देखा नहीं है सच, one way is definitely the dopamine, right? So the way you start enjoying things, right, the similarly children start enjoying the screen, right? So अगर आपने उसका खिलौना सब कुछ उसका छीन लिया एकदम से तो tantrums तो आएंगे ही, right? So if somebody who is addicted towards 4 hours or 5 hours of screen time and suddenly you make it 0, वो खुद को मारेगा, आपको मारेगा, सर दीवार में मारेगा, सब कुछ करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा to get that back, राइट? बिकॉज उसके लाइफ में वही था और वो भी आपने उससे छीन लिया. सो दिस डेफिनेटली गेट्स इनटू बिहेवियर प्रॉब्लम्स. सो एंड ऑल्सो व्हाट द चाइल्ड इज वॉचिंग, लॉट ऑफ टाइम द चाइल्ड, पेरेंट्स डोंट नो व्हाट चाइल्ड इज वॉचिंग. वो कुछ भी देख रहा है, वो देख रहा है बच्चा पापा को मार रहा है, वो भी वो देख रहा है उसके अंदर, वो कुछ नॉनसेंस भी देख रहा है. सो दे जो देख रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है. अच्छा, और इसका स्पीच एंड हियरिंग पे कुछ इफेक्ट होता है? लाइक आई नो कि इफ़ यू आर यूजिंग ईयरफोन्स बहुत अर्ली एज में तो इट कैन डैमेज योर ईयर ड्रम्स. वैसे ही स्पीच पे भी कुछ होता है कि लाइक स्पीच डिलेज होने लग जाता है बिकॉज यू नॉट टॉकिंग टू एनीवन. तो आप बात करने का मन नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली जब आप छोटे हो और आप बात करने का आपको मन नहीं है, कम्युनिकेट करने का मन नहीं है, तो आप धीरे धीरे वो करना ही बंद कर देते हो, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग. सो लैंग्वेज डेवलपमेंट हैज़ मल्टीपल डोमेन्स. कि स्पीच और लैंग्वेज डेवलप करने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है? क्या होता है, लाइक व्हाट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट? एंड सो
there are prerequisites to language development, right? तो अगर बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होने से पहले कुछ चीज़ें डेवलप होनी ज़रूरी हैं, ठीक है? जैसे कि आई कांटेक्ट, अगर बच्चे में आई कांटेक्ट ही नहीं है तो आप बच्चे को कैसे कुछ सिखाओगे? मान लो बच्चे ने आई कांटेक्ट, you are reading him a story or her a story, you're telling about this cup and child is not even looking at it, how will you able to make the child understand it? तो आई कांटेक्ट एक प्रीरिक्विजिट है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप होने के लिए. सिटिंग बिहेवियर, बच्चा बैठता ही नहीं है एक जगह पे, आप उसको बैठाओ उठ के दौड़ने लगेगा पूरे आसपास कमरे में, उसका सिटिंग बिहेवियर ही नहीं है. ही हैज़ अ सिटिंग बिहेवियर ऑफ लेस देन 10 सेकेंड सपोज, आप उसको कुछ सिखा ही नहीं सकते. How will you teach a child A, B, C, D or 1 to 10 counting if the child is not ready to sit at one place? So eye contact, sitting behavior, attention span and concentration. What is the attention span that the child is able to give? What is the concentration of the child? How compliant the child is. कि आज उसके हाथ में कोई खिलौना है, आपने ले लिया, वो ओके है उससे, आप उसको बोलते हो मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा, पहले तुम ये कर लो, वो रेडी नहीं है, वो चीज़ें फेंकने लग रहा है. सो ये सारी चीज़ें, आई कॉन्टैक्ट, सिटिंग बिहेवियर, अटेंशन स्पैन एंड कॉन्सेंट्रेशन, कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें पहले चाहिए होती है हमारे को लैंग्वेज डेवलप करने से पहले. तो बच्चा पहले ये सब डेवलप करता है, उसके बाद में लैंग्वेज डेवलप होती है. अब तुम पहले ही इतनी अर्ली एज पे उसको स्क्रीन दे देते हो, ये सारी चीज़ें डेवलप होने का तो टाइम ही नहीं मिलता. ये सारी चीज़ें डेवलप कैसे होती हैं? when you play around in the nature, when you talk to people around you, तब social communication आता है, तब तुम्हें समझ आता है turn taking क्या होता है, कि अगर मैंने कुछ बोलना है तो you are patiently listening towards it before speaking, right? अगर किसी को turn taking नहीं पता है कि यार वो बोलना चालू किया, मैंने अपना बोल दिया, मैं उसको बोलने ही नहीं दे रहा, सो यू डोंट नो कि व्हेन माय टर्न कम्स आई हैव टू स्पीक दैट टाइम. ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, सोशल कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, कोई आता है तो उसको हाय बोला जाता है, सोशल स्माइल दी जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें कम्स विथ व्हेन यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू अ रियल वर्ल्ड, नॉट इनटू अ वर्ल्ड ऑफ स्क्रीन. कि व्हेन यू आर जस्ट यूज्ड टू स्क्रीन्स तो यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, एंड आप एक तरीके से उस चीज़ को नेग्लेक्ट करने लग जाते हो, जो सोशल कम्युनिकेशन है, लोगों से मिलना. एंड फिर आपके पास कोई पेरेंट लेके आ रहा है अपने बच्चे को कि यार ये तो बहुत बदतमीजी करता है, ये बात नहीं मानता, ये नहीं करता, तो आप प्लीज़ लुक इनटू हिम एंड हिज केस. सो हाउ वुड यू डील विद दैट सिचुएशन, दैट चाइल्ड जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है बात करने में, जिसको बदतमीजी करनी है आपसे वहाँ पे, या फिर मेरी नहीं चल रही है तो मैं नहीं करूँगा जो आप बोल रहे हो, मैं सारी चीज़ें नहीं करूँगा, तो वो उस केस में हाउ डू यू डील? राइट, सो see, sometime it becomes very difficult, but there's a way that you connect with somebody, right? So eventually someone has their own, let it be anybody, they have their own interest, right? So we try to find out their interest, right? A lot of time the behavior is because of the parents sitting next to them, so a lot of time we tell them that if you can sit outside, we want to bond with the child in separate, right? So we try to bond with the child, we try to find out what are the games they like, we try to play the same games along with that child, and similarly when we start building a bond, so eventually if you see maybe you two are together, you are doing this podcast together, right? You are not doing with any third person who is not interested into the podcast, so you found somebody who had a similar kind of a interest, so we become that a partner of that child who have the similar interest what the child has right now, to get more out of him. Slowly we get more out of him, and then we, along with the family, we all work together towards it. So we alone working won't make any difference. So suppose यहाँ पे तो उसको सब स्क्रीन वगैरह हटवा दी, घर जाके मम्मी पापा ने फिर दे दी, तो उससे तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा. So it should be all together, a whole family working together. Not let it be any therapy, let it be speech therapy, let it be occupational therapy, let it be any kind of a therapy. Or complete family should be in the loop, then only you see a better progress. They are approaching you as a specialist to cater that. So what all changes have you seen so far from last 1 decade? So it is very difficult to comment on last 1 decade because I am too young to comment on that part. But lekin I have seen miraculous change. Like I have a lot of times previously the referrals used to come direct from a primary doctor, if you say pediatrician or an ENT or a neurologist or a psychiatrist. Nowadays we see more direct referrals. They are reaching out to us directly saying that मेरे बच्चा बोलता नहीं है, I'm going to a speech therapist.
मेरे बच्चे को शायद ही इज नॉट एबल टू क्लाइंब अप और इज नॉट एबल टू डू हिज राइटिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, वो बटन खुद से नहीं लगा पाता, आई एम रीचिंग आउट टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, राइट? सो हिज फाइन मोटर स्किल्स आर नॉट गुड, राइट? सो पेरेंट्स आर सो अवेयर नाउअडेज कि छोटा सा छोटा बिहेवियर they are finding it and they are finding it as a concern. Lot of time we see it as a over concern कि यार ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए, है ना? कि lot of time we see recently we saw a patient who was out of a worry that is completely genuine. So we saw a patient 6 months old with a Down syndrome, right? So the dad was like, I'm so worried. How will be the future of my child? Should we start the therapy now itself and all of that? I read it on the Google, what all challenges that my child might face in the future and everything. So should we start therapy now itself? The child is 6 months old into his hand, right? So he's bringing up for the therapy right away. So we told them that there's no need of bringing him to the therapeutic center right now, but we gave him a home program that they, as a parent, what they can do at the home, right? So this is also another thing that we are started doing right now, because the awareness has increased. So good thing about awareness is ki we are able to work on early intervention. The biggest point on awareness is कि हमें बच्चे को right age पे start करना है treatment, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन है first 5 to 6 years is extremely crucial for us for its development. तो जो ग्रोथ मुझे उसके first 6 years में दिखने वाली है वो उसके बाद कभी नहीं दिखने वाली, right? So why I am so much focusing on early intervention is कि अगर मैंने पहले भी कहा था, अगर मेरे पास कोई बच्चा 6 साल की उम्र के बाद आता है, I have a very less role to play in compared to when the child comes at the age of 1.5 years, because the younger the child, the more malleable the brain is. The brain is more like a clay. आप उसको किसी भी shape में बना सकते हो, right? You can teach him however you want. So suppose if I tell you to learn an American accent, so I would say you might take more than 2 years, still you won't be sounding like an American right now, okay? So but if I teach to a 2-year-old American accent, he might take 2 months to grasp it, right? क्योंकि इतने लाखों न्यूरोनल कनेक्शंस 1 मिनट में बनते हैं बच्चे के ब्रेन में, जो कि बड़े में नहीं होता है, right? So the more focus that we are putting is on early intervention, but good, due to technology, due to internet, the people are getting more aware and people are reaching out to us on the right age. That is something is good point to us right now. एंड बिकॉज लाइक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो आप यंग एज में ही, तो जो हम बात करते हैं कि लाइक 70% ऑफ आवर ब्रेन इज डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 12-13, राइट? Yes. तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज प्लेइंग गेम्स या फिर स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो गया है, तो आप इतना अपने आप को अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, तो डज दैट अफेक्ट द ब्रेन ऑफ चाइल्ड एज वेल, या फिर इज इट जस्ट अबाउट द मोटर स्किल्स? No. It's totally depends on what exposure that you are getting in your early age. So suppose if somebody who's getting very good exposure in terms of all the domains, in terms of suppose his studies, sports, you can say language, speech, everything, the games. Even games is something which is going to make your brain sharper, right? Any kind of a problem solving activity is something that is going to make your brain sharper. So I was just going through a study. I don't remember. I don't remember exactly. So there was a thing saying that whoever in their childhood used to play computer games has better IQ compared to those who were not playing computer games. Okay. Right. So I don't know. I was just I just had a quick go through on that study, but definitely the more you use your brain, definitely it's gonna get evolved accordingly. Okay, so let's talk about your hospital, Karan Jiva. Right. And what all domains are you catering, and is it just for children, early age intervention therapies, or for people who are adults as well and they are going through something in their life, और उसके लिए भी they are working towards speech therapy या फिर hearing aids, occupational therapies, etc. So please tell us about that. My center name is Karan Jiva Hearing, Speech and Neuro Rehabilitation Center. Okay. So one part of the center is hearing, where we see any kind of a patient who have
hearing or vertigo related issues, right? So in hearing we see patients who have difficulty listening to others, as well as any kind of ear infections, or maybe just a doubt that the person is not hearing. Okay. And the other part of it is a therapeutic part, so where we cater all kind of therapies like speech therapy, occupational therapy, physiotherapy, clinical psychology, behavioral modification therapy, special education, right? So we cater across all the age group from pediatric to geriatric. So if जीरियाट्रिक क्या होता है? geriatric is adults, old Okay, age okay, people, old age people. old age people, right? So we cater from young childhood, even newborn, to an old age person, right? So if I talk to you about newborn, so as soon as the child is born, we run a newborn hearing screening. Newborn hearing screening is something that at the time of birth we find out if the child is able to hear or not. Okay. So this has become something mandatory, and we are doing it with lot of dedication and purpose, because lot of times it is very difficult to find out if the child is hearing or not until the child grows older, right? Because यूजुअली बच्चा अर्ली एज में विजुअल लर्नर होता है, यानी देखकर सब कुछ सीखता है ना? तो इतना पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता कि बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा, बिकॉज इट बिकम्स जो भी वो बात कर रहे हैं वो पलट के देख रहा है, कर रहा है, बिकॉज वो विजुअली सब कुछ देख के ट्रैक कर लेता है, राइट? सो अगर हमने अर्ली एज पे फाइंड आउट नहीं किया कि बच्चा सुनता है या नहीं सुनता, तो उसकी लैंग्वेज डिस्टर्ब हो सकती है, वो शायद वो कभी भी बोल नहीं सकता इन फ्यूचर या सुन नहीं सकता अगर हमने राइट एज पे उसको ढूंढा नहीं. सो वी रन अ न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग दैट इज यूनिवर्सल. द हॉस्पिटल्स दैट वी आर वर्किंग विथ राइट नाउ, राजस्थान हॉस्पिटल, मेटरनाइट हॉस्पिटल, होप हॉस्पिटल, all these hospital we run a universal newborn hearing screening. That means any baby that is born within that hospital we do a hearing screening test and we find out कि बच्चे को सुनाई देता है या नहीं देता है. So a lot of time we have children with cerebral palsy or any kind of other issue. Due to that the child is not able to eat food properly, or often chokes during eating or coughs during eating. So we have a swallowing rehabilitation program for pediatric and adults both, right? Then we have pediatric occupational therapy, and in that we have a sensory integration therapy. We have gross motor based therapy, fine motor based therapy. Then we have pediatric physiotherapy. Any kind of a physical disability if the child has, they can come to a pediatric physiotherapy. Then comes the pediatric behavioral modification therapy that is often seen a lot nowadays, कि बच्चों में tantrums और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं. and one of the reason is screens, right? screen time बढ़ने के कारण और parents का कम time spend करने के कारण poor parent child interaction is another biggest problem. The behaviors are getting developed into the children. So we have behavioral modification therapy, and then we have special education. So a lot of time if the child is unable to do well into school setup, right? So the child has learning disability, so the child is not able to perform well in the group of 50, 40, 30, 20. Then they have a specialized attention whom we call a special educator, who teaches the curriculum, reading, writing to such children who are not able to develop it on their own, right? In the group, in the mass spaces. That is the special education. And then we have complete pediatric audiology services, where we check through directly into the newborns to adults, directly through the brain if the child is hearing or not. Then we have hearing based test. Then we also deal into hearing aids. If the child is not able to hear, we put on hearing aids to the child or an adult. But if the child is 100% deaf during his childhood, that is congenital deafness, then the hearing aid usually don't work, right? In that case there is a surgical intervention that we work along with an ENT surgeon. We run a cochlear implant candidacy program, and then we find out if the child is eligible for the cochlear implant, and then there is a surgical implant that is inserted into the child's head, and then the child is able to hear and speak as normally as you and me are doing, right? So imagine how great this technology would be कि बच्चा by birth बिल्कुल नहीं सुन सकता है, बिल्कुल deaf है, but लेकिन कोई सारे hearing aids ट्राई कर लिए, conventional method ट्राई कर लिए, पर बच्चा कुछ नहीं सुन सकता क्योंकि वो organ completely dead है.
बट विथ वन इम्प्लांट, सर्जिकल इम्प्लांट, वो बच्चा वापस से सुन सकता है और हम लोगों की तरह नॉर्मल स्कूल जा सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, सब कुछ कर सकता है, एंड हिज स्पीच इज एज नॉर्मल एज यू आर स्पीकिंग. And what role does a child's school and teachers play in this? Because see, if it is such a severe thing, and like it is like people should be aware about this कि उनके बच्चे को क्या हो रहा है, they should consult a specialist. So why don't schools provide this facility that they are tying up with say Kern Jiva, and आप स्कूल में हमारे बच्चों से मिलो and you know just talk to them and फिजिकल जो आप बता रहे थे कि फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन पे वर्क करो या फिर मोटर स्किल्स पे वर्क करो. सो व्हाट रोल डज स्कूल्स प्ले इन टुडेज डे एंड एज? So, if I talk about CBSE, so CBSE has made it compulsory that every school should have a psychologist, right? So psychologist is equally capable to diagnose and find out if the child has any problem or not. Okay, psychologist can find out if the child has any problem or not, and the schools have also made it compulsory that the school should even have a special educator. Okay. Right, so these two are compulsory, even though most of the schools are not following it, right? Maybe they are doing it, but whenever we visit the school, we don't see much of the psychologists around or a special educator around, right? Okay. So but in terms of awareness, social media has helped to aware even the laymen. So teachers also tend to see such videos where they find out कि यार अच्छा ऐसे ऐसा है बच्चे में, तो शायद ये प्रॉब्लम होगी, तो हम इनको इनके पास भेज देंगे. ठीक है. As a child development center, we run a lot of awareness based programs. So we reach out to the schools and we train their teachers, and we tell them and we give them certain forms and sheets and to fill for the each child, as well as what red flag signs that you need to look into the child, when you should refer, to whom you should refer. So all these things are taken care when we do a school teacher training program. Then we also run a school child development screening program. Recently we went to SRN International School, and they even had a psychologist, but they themselves told that a lot of children have developmental delays. So if you so when we approached them that we want to run a screening camp at your school, they were more than interested. They acknowledged, and they were like, I think the next parent teacher meeting they invited us, and we had our own space, and all the children who came for a parents teacher meet had to come for this developmental screening. Okay. And I'm telling you, a lot of children we find out were having developmental delays, and parents were only having this complaint कि ये पढ़ाई में अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे, ये अच्छा क्यों नहीं कर रहे. They nobody knew कि इसके पीछे reason क्या है. And we found so many children with learning disability, right? They are not able to read properly, write properly. They're not able to imagine a 16-year-old child we met, and when we asked him what is 40 multiplied by 3, and he couldn't answer that. Right, so he was a 16-year-old, right? So a lot of time there's a learning disability, and the parents are again and again teaching the child the same thing, but they're not able to find out कि यार क्या reason है इसके पीछे, right? And if we talk about speech delays, so like fumbling हो गया, cluttering हो गया, so what are the reasons कि कोई बच्चा, for example, I have faced this कि when you are young and आपको टीचर्स खड़ा करती है क्लास में कि you have to read, है ना, एक पैराग्राफ सब लोग रीड करेंगे, और कुछ लोग होते हैं बहुत नर्वस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत फ्लुएंटली बोल लेते हैं, और वो नर्वसनेस आती है बिकॉज you know you might fumble over there, right? तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे. Right, So how do you cater that, how do you work on fumbling and cluttering and speech like therapy? So this comes under fluency shaping therapy. So under fluency there are various disorders like stuttering, where you tend to get stuck while speaking, right? That is also named as stammering, right? And the another one is called cluttering. Cluttering is fast rate of speech. When you're speaking too fast, suppose if I want to speak here and if I'm cluttering, so I'll be speaking in this way right now, that I'm speaking so fast right now, right? So this is called as cluttering, right? So stammering is something where people are most concerned about, and which makes them feel ashamed in front of other people to talk, and which eventually make them lose their confidence. And we also see that they often have anxiety, depression, and all these things secondary to stammering, right? So abhi
Stammering could be due to multiple reasons, right? But the most common reason due to the because of which the stammering is the root cause, the poor breathing pattern the person has, right? Okay. So suppose if I give you an example, what is stammering? सो एक पाइप है जिसमें से पानी आ रहा है, तो पानी एकदम फ्लो में आ रहा है, बिल्कुल स्मूथली बाहर आ रहा है, राइट? अगर उस पाइप पे कोई पैर रख दे या फिर वो पाइप कहीं से मुड़ जाए तो पानी अटक अटक के आएगा, राइट? सो स्टैमरिंग इज समथिंग सिमिलर. हमारी बॉडी में विंड पाइप होता है जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं. तो जब भी हम बात करते हैं तो हमारी स्पीच के साथ एयर बाहर आती है, और जब भी उस विंड पाइप में कोई भी रुकावट आएगी, यानी कहीं पर भी स्ट्रेन आएगा, किसी भी वे में हम उसको रोकेंगे या फिर हमारी ब्रेथ काफ़ी शॉर्ट होगी जिसकी वजह से उसमें रुकावट आई, तो सामने वाला व्यक्ति स्टैमर करता है. तो सपोज अभी मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अगर इसी टाइम पे मैं अपने मसल्स को स्ट्रेन करता हूँ, सो यू कैन सी ऑल द मसल्स स्टार्ट पॉपिंग लाइक दिस, एंड I tend to stammer, right? So this is the most common cause that we have seen. In this, we have to work on a lot of things, like we have to regulate their breath. We need to work on the breath control. We need to work on speech breathing. Then we have to come on a syllable level, phoneme level, syllable level, then phrase level, then word level. Then we come to a conversation level, and then we come to generalize it in front of multiple situations, right? So when we talk about stammering, stammering सबको होती है, मुझे भी होती है, सबको होती है, right? बट अगर ये जो एरर्स होते हैं स्टैमरिंग में, ये एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा होते हैं, देन इट टर्न्स आउट टू बी अ डिसऑर्डर और अ प्रॉब्लम. That's when you need to visit a speech therapist. स्टैमरिंग के साथ मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ पर्सनल रीज़न के हिसाब से साइकोलॉजिकल भी कनेक्टेड होता कहीं ना कहीं है. जैसे Yes. विंड वाला जो आपने रीज़न दिया, मोस्टली जैसे अगर मैं मेरा केस लूँ तो वेन एवर आई वॉज स्पीकिंग, मतलब एक बार आपने फंबल कर दिया या फिर आपको जैसे स्टेज फियर होता है वो है, आप उससे पहले बहुत फ्लुएंटली बोल रहे हो, कोई इशू नहीं है, पर आपने जैसे 50 लोगों के सामने बोल लिया, पर सडनली आपको बहुत लोगों के सामने बोलना है, Right. वहाँ पे आपको फियर हुआ, एनजाइटी हुई और आप वहाँ पे स्टक कर गए. अब वो चीज़ आपके बिहेवियर में आ चुकी है, Okay. तो अब उससे आप बेसिकली कैसे डील करोगे फिर? बिकॉज आपको पता है कि आप नॉर्मली नहीं कर रहे हो स्टैमर, आप नॉर्मल हो, बट वो एक ट्रिगर पॉइंट आपको है. हाउ कैन डील विद दैट? So definitely ये psychological होती है. The thing that you are talking about is, right, your speech quality is changing in perspective to different situation, right, or different authority, I would say. So if you are in a homely setup, you don't stammer at all, but whereas if you are in front of the maybe four big people around and you are sitting in an interview, you might stammer at that time. ठीक है? So इसको क्लियर करने के लिए भी देयर मेन रूट कॉज वही होता है जो मैंने बताया, पर लेकिन हाउ टू रेगुलेट योरसेल्फ एट दैट टाइम. दूसरे टाइम तो आप कोप अप कर लेते हो, बट उस टाइम पे कैसे रेगुलेट करना है, दैट इज व्हाट वी टीच यू ड्यूरिंग द थेरेप्यूटिक सेशंस, कि क्या करना है उस टाइम पे. एंड इवेंचुअली वी सी लॉट ऑफ youngsters, especially IT graduates, who often come to us before interview कि सर अब इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमें स्टैमरिंग होती है, एंड देन there are few sessions and they're able to do that very well. And lot of time like if they are able to understand that why was this happening and how we have taught them to overcome it, if they understand the whole concept behind it, they are able to carry that थ्रू आउट देयर लाइफ. ठीक है, कि आज मैं मान लो 25 साल का हूँ, मेरे एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग पैटर्न है, अभी मेरे को सांस एब्डोमेन से लेनी है, ठीक है, यानी मेरे को मेरे पेट से सांस लेनी है, बट व्हेन आई लुक एट द पर्सन विद स्टैमरिंग, आई सी कि वो चेस्ट से और शोल्डर से ब्रीथ करता है, तो वो ऐसे ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, सांस ले रहा है तो ऐसे ब्रीथ ले रहा है, ठीक है. सो जो वो टेक्निक्स को समझ जाता है और उस तरीके को समझ जाता है कि क्यों हम इसको इस वे में करने को बोल रहे हैं उनको, और क्या उनको मेजर लेने हैं, तो वो तो उनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आती. दे आर एबल टू क्रैक दिस, राइट. बट सम पीपल हु टेक दिस एज एन कि यार एक्टिविटी ये करनी है हमें, तो वो उस टाइम के लिए तो सही कर लेते हैं, बट उसमें रिलैप्स भी देखने को मिलता है कि यार ये सही तो हो गई बट 6 महीने बाद वापस आ गई, बिकॉज अगेन दे turned back to the same way that they were using. अगेन वापस वैसे ही बात करने लग गए, वैसे ही सांस लेने लग गए, वैसे ही मसल पे स्ट्रेन देने लग गए, सारी चीज़ें वापस वैसे ही होने लग गई, राइट. Okay. So
जैसे व्हेन आई वाज डूइंग थिएटर तो हमें ये बताते थे कि डायफ्राम से, जो आप बोल रहे हो कि पेट से सांस लो, वो मैंने फर्स्ट टाइम उस टाइम पे सीखा था कि जब थिएटर हम कर रहे हैं और हमें सिखाते थे कि पेट से सांस लो, जिससे आप वर्ड्स नहीं खाओगे, आप प्रॉपरली बोलोगे, बेस आएगा एक एंड वर्ड्स क्लियर होंगे, राइट? Yes. तो उसकी एक्सरसाइजेस बताते थे हमें कि सुबह Yes. तुम ओम बोलो या फिर Yes. डायफ्राम से ब्रीथ करो और सा बोलो, वो अलग अलग एक्सरसाइजेस होती थी। तो स्टैमरिंग के लिए भी व्हाट आर दोज एक्सरसाइजेस जो एक लेमैन जिसको बहुत सीवियर डिसऑर्डर नहीं है बट दे जस्ट स्टैमर इन सम प्लेसेस, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बोला कि जब स्टेक्स हायर होते हैं तो हम स्टैमर करते हैं, जब आप कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप स्टैमर करोगे, राइट? राइट तो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए कौन सी थेरेपीज हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर सकते हो अपने डेली रूटीन के अंदर? So, first thing, the most important thing I would tell you is कि अपनी breathing pattern को सुधारो. So, first thing, learn about abdominal breathing, right? What is abdominal breathing? कि आप कैसे चेक कर सकते हो, आप अपना एक हाथ अपने चेस्ट पे रखो और एक हाथ अपने पेट पे रखो एंड देन यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन यू सी कि आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है या चेस्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है? इफ़ यू सी कि आपका चेस्ट ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग चेस्ट ब्रीदिंग, ठीक है, या फिर क्लेविकुलर ब्रीदिंग, ठीक है? बट इफ़ यू सी कि आपका पेट बाहर आ रहा है, that means you are doing the right way of breathing, right? So when you are doing a diaphragmatic breathing, definitely you can store more air in your body, right? When you are storing it within your chest or shoulders, right, you can store a small amount of air. जब हमारे पास रिसोर्स ही कम होगा तो हम बोलेंगे, हवा भी हमारे लिए रिलीज करने के लिए कम होगी तो हमारे अटकने के चांसेस ज़्यादा है। अब हमारी गाड़ी में पेट्रोल ही बहुत ज़्यादा है तो हमारी गाड़ी कहीं नहीं रुकने वाली, बट अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल ही कम है तो अटक सकते हैं हम, ठीक है? सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. तो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड दैट ब्रीदिंग इज जस्ट टू रिलैक्स योर बॉडी एंड मेक श्योर सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मेक श्योर यू वॉच कि आप जब सांस ले रहे हो तो इधर किसी प्रकार का स्ट्रेन तो नहीं आ रहा. तो इसको आप विजुअली फीडबैक लीजिए और एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे फोकस करिए, है ना? अदर देन दैट वी हैव लॉट ऑफ अदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू फॉलो. सो रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड आवर यूट्यूब चैनल. वी विल बी सून पोस्टिंग दोज वीडियोज ऑनलाइन. सो इफ somebody wants to work on their breathing as well as overcome any kind of a fluency based disorder like stammering, they can watch to that link on our YouTube. They can type Karan Jiva and look at those videos, and in that way they can get help, right? Okay. And if you talk about cluttering as well, तो उसका क्या होता है? Why do people clutter and speak fast? Because when I asked you कि मैं बहुत ज़्यादा 1.5x पे चीज़ें सुन रहा हूँ, पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, तो मैं तेज बोलने लगे हूँ, इवेंचुअली वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है बॉडी में कि आप सुन तेज रहे हो तो बोल भी तेज रहे हो, राइट? सो हाउ डू यू वर्क ऑन दैट कि आप क्लियरली धीरे धीरे बोलो? यस, सो वन पार्ट इज डेफिनेटली sometime if you have from a longer duration you have an exposure कि सब आपके आसपास तेज बोलते हुए आए हैं, मतलब जल्दी जल्दी बोलते हैं. It depends on language to language also. Certain languages are quite fast, है ना, जिसमें आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में आप बहुत जल्दी बोलते हो? हाँ, not really, but it depends कि आपके आसपास वाले कितना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, है ना? So in your case you told me that from so many years you used to watch videos online, everything on 1.5x, and you have been surrounded with people who used to speak fast at home as well, right? So you learn a way कि यार तुम एट द एंड तुम सीख रहे कहाँ से हो? तुम आसपास से ही सीख रहे हो, ठीक है? सो यू लर्न अ वे टू स्पीक कि यार मुझे भी फास्ट ही बोलना है, एंड दैट हैपन्स अननोइंगली, ठीक है? But many of the times the cluttering also happens because of the poor breathing pattern. यानी आप चेस्ट से ब्रीथ करते हो, आप कम एयर स्टोर करते हो, अब कम एयर में आप कोशिश करते हो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स में रिलीज कर दूँ, फिर मैं उसके बाद सांस लूँ, है ना? सो अगेन ब्रीदिंग इज द पॉइंट इन क्लटरिंग ऑल्सो एज वेल एज इन स्टैमरिंग ऑल्सो, है ना? अब इसको स्लो डाउन करने के लिए देर आर वेरियस मैकेनिज्म. वन मैकेनिज्म दैट वी यूज इन टू पीडियाट्रिक्स इज पेसिंग मैकेनिज्म, वेर वी आस्क देम कि बच्चों के अंदर की पेसिंग यानी हर वर्ड पे आपको टैप करना है. सो माई नेम इज करण, okay? So this helps them to regulate their speed, right? And in adults we use metronome. Metronome is an instrument जिसमें क्या होता है, आप एज अ टाइमर की तरह रहता है कि आपका जब वो सुई ये करके ये आई तो आपको एक शब्द बोलना है, उसमें आप स्पीड सेट कर सकते हो सुई की, है ना? तो आपको उसके हिसाब से सुई के हिसाब से वर्ड्स बोलने, राइट? सो जितना तेज सुई जा रही है, मतलब अगर आपको इतने में आई तो एक ही वर्ड बोलना है इसमें, अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो आपको वैसे वर्ड्स बोलने हैं. सो अडल्ट के केस में मेट्रोनोम, देयर आर वेरियस एप्स नाउअडेज.
आपको फिजिकल डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो मेट्रोनोम के नाम से ही होती है शायद आप. हाँ, I've used it. हाँ. Yes, so you can use that as well. So this will help you to reduce down your speed. But overall your surrounding matters कि यार आप feedback किससे ले रहे हो, आप किसको देख रहे हो, अगली बार आप किससे बात कर रहे हो, वो वापस से वही आपको exposure मिल रहा है, तो again you fall back to the same thing, right? एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अ पेरेंट कि वो जितनी जल्दी अपने बच्चे को चाइल्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस कराओगे तो उसका इवन इफ द चाइल्ड डजंट हैव एनी प्रॉब्लम डिसऑर्डर भी नहीं है बट इवेंचुअली दे विल बी बेटर एट थिंग्स फॉर एग्जांपल स्पीकिंग लाइक इट्स अ स्किल राइट Right. और आप जितनी जल्दी आप चाइल्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम से जाओगे थेरेपीज लोगे तो यू रियली गुड एट इट एंड यू कैन मॉड्यूल योर वॉइस अकॉर्डिंगली फ्यूचर में सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट So पहली चीज़ कि लॉट ऑफ टाइम पीपल एसोसिएट क्लिनिक्स एंड सेंटर्स एज कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो ही आना है ना. सो यूजुअली व्हाट पीपल एसोसिएट देयर चाइल्ड एज कि अगर मेरे बच्चे को बोलने में दिक्कत है तो स्पीच थेरेपी करवा लेंगे. अगर मेरे बच्चे को मान लो किसी ने एडवाइस किया तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा लेंगे, राइट. सो फ़ायदा, सपोज देयर इज नो हार्म इन गेटिंग अ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी even if your child doesn't have any problem. So eventually you are eliminating all the risk by enrolling your child at the early age. So make sure कि सारे जो milestones हैं वो time पे hit करें, right? So definitely there is an advantage when you bring your child, even though if the child is not so evident to see as a problem, but still you feel कि यार और बेटर हो जाएगा. सो लॉट ऑफ टाइम्स वी सी अ पेरेंट्स जिनके बच्चों में कोई स्टैमरिंग नहीं होती है ना, दे बट समटाइम्स एज यू टोल्ड कि स्टेज पे फंबल कर गया तो ये कर गया, तो पेरेंट्स कम एज अ रिस्क फैक्टर कि यार कहीं ये स्टैमर तो नहीं कर रहा है मेरा बच्चा, है ना. इवन दो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, दे स्टिल एनरोल देम फॉर अ बेटर quality of speech so that my child should understand what are the better ways of speak. He should reduce the speed while speaking. So a lot of time parents come कि यार सर मेरा बच्चा भी speech दे रहा था stage पे, है ना, and I could see there were few errors and there were the child's speed of speaking was quite high. So they come to us and they tell, even though that is okay, that is not such a problem कि आपको specially dedicatedly उसके लिए speech therapy लेनी है, but yes they come कि ये प्रॉब्लम भी अगर हम एलिमिनेट कर दे तो माई चाइल्ड कुड बिकम अ बेटर प्रोफेशनल स्पीकर इन टू द फ्यूचर, right? So that people have started doing right now. So definitely language therapy is recommended to every child. First of all, it is so much fun for a child where the child is surrounded with a lot of toys around and there's a very friendly therapist which is like a second mother to the child, right? So the child, whoever is coming for a therapy, speech therapy and a language therapy or occupational therapy or behavioral modification therapy, trust me, the children don't want to leave the center. So they are like, we want to be here for more time, right? So we have designed the center in such a way that it should not look like a medical setup, it should not look like a clinical setup. It looks like a very friendly space to a child and it never gives them a feeling that they are walking into a center or a clinic which is designed to develop their milestones. So it happens in a very play-based manner. So I think every child should get an experience and eventually and anyways it's going to help them to build their milestones better, right? So stronger roots at the end, and I would suggest कि जैसे जो प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं पॉडकास्टर्स हैं या फिर इन जनरल एक्टर्स हैं, जैसे मैंने थिएटर करा है तो मुझे थोड़ा पता चला कि स्पीच कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उस चीज़ में आपका जो सेंटर है, हाउ डज दैट हेल्प अ प्रोफेशनल टू जस्ट मॉड्यूल एंड मेक देयर वॉइस बेटर? सो मोस्टली हमारे पास जो प्रोफेशनल आते हैं वो प्रॉब्लम होने के बाद आता है प्रोफेशनल, है ना. जब प्रोफेशनल को प्रॉब्लम आ गई है कुछ उसकी वॉइस में, जब तक सब अच्छा चल रहा होता है लाइफ में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. जब दिक्कत आती है तब बोलते हैं कि अरे मेरा तो प्रोफेशन ही मेरी आवाज़ है, अगर ये चली गई तो सब चलेगा मेरा तो, है ना. सो लॉट ऑफ टाइम वी सी सिंगर्स, टीचर्स एज वेल एज मार्केटिंग पीपल who use their voice a lot, okay, so more than maybe 10 to 12 hours per day or 8 to 10 hours per day. So speech therapist works on voice, okay, so we call it as voice therapy. So lot of time singers, what they do is they vary their pitches, right? So they go from a very high note to a very low note and that requires a lot of muscle tension. So there are something called vocal cords in your
throat, right? So vocal cord is nothing but voice box. So वोकल कॉर्ड्स को जब भी आप स्ट्रेच करते हो तो वो एक हायर नोट पे जाता है, मतलब आवाज़ हाई फ्रीक्वेंसी पे जाती है, और जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो बेसिकली तो वो लो फ्रीक्वेंसी पे जाता है. सो इट इज़ अप टू यू टू मॉड्यूलेट योर वॉइस, राइट? तो सिंगर्स उसको काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूलेट करते हैं, जो कि इस पे स्ट्रेन डालते हैं, एंड इवेंचुअली दिस harms your vocal fold by developing edema, maybe जिसे हम swelling बोलते हैं. तो swelling develop हो जाती है आपके vocal cords पे, या फिर अगर ये लंबे टाइम तक swelling आने के बाद भी कंट्रोल में नहीं किया आप, still you are singing, और maybe if you are teacher still you are speaking, shouting and everything, तो वो nodule में convert हो जाती है. Nodule is something, a pimple kind of a thing on your vocal cords, right? तो अब जब आवाज़ सुरीली आती थी पहले, अब उसकी जगह बिल्कुल ऐसे आने लग गई. देन दे कम टू अस एंड से कि सर हमारी आवाज़ तो ऐसी हो गई है, या फिर ब्रेथी हो गई है, सिर्फ हवा आ रही है, हेलो हेलो ऐसी आवाज़ आ रही है, क्योंकि Overuse कर लिया फोनेटरी गैप आ गया है एंड ओवर यूज करने लग गया है. ओवर यूज करिए, बेसिकली वोकल अब्यूज़ किया है आपने, है ना? तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लगी है. तो उसके बाद वी टेल देम वॉइस थेरेपी इज नथिंग अबाउट voice therapy is nothing but educating a person about their voice, how to use their voice, how generally a person use their voice, how have you abused it, how to avoid it in future, and how to control your problem right now. Otherwise you may need to get a surgical intervention, right? So अगर नोड्यूल को टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो सर्जरी से निकालना पड़ता है, राइट? तो अगर ये चीज़ को सही स्टेज पे सही नहीं किया गया तो इवेंचुअली सर्जरी होती है, ठीक है? तो ये चीज़ हम उनको समझाते हैं, एंड वी एजुकेट देम एंड वी टेल देम राइट स्ट्रैटेजीज कि भाई कॉफ़ी चाय पीना बंद करो, है ना? बिकॉज इवेंचुअली कैफीन, इफ somebody is a smoker or drinks lot of alcohol, we tell them totally avoid it in that situation if your voice is already bad, because eventually these things dehydrates your body, और dehydrate करेगी तो vocal cords हैं वो भी dehydrate होंगे, और जिस पे पहले ही सूजन आई हुई है वो dehydrated हैं, उसको आपस में भिड़ रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो वो और चोट लगेगी उनके ऊपर, राइट? बट चाय से तो लाइक ऐसा सही अच्छा लगता है ना, रिलीफ फील होता है, गरम कुछ भी आप पी रहे हो तो. दैट इज टू योर नॉर्मल थ्रोट, राइट? ओके. या बट फील तो जब दिक्कत होती है तब भी अच्छा ही होता है, बट बॉडी को तो डिहाइड्रेट करता है, Okay. एंड डिहाइड्रेट कर रहा है तो इवेंचुअली आप वॉइस को यूज़ ज़्यादा करोगे, तो डिहाइड्रेटेड वोकल कॉर्ड्स पे और अब्यूज़ होगा तो और ट्रॉमा आएगा आपके वोकल कॉर्ड्स. सो हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर वोकल कॉर्ड्स, लाइक जैसे गार्गल करने के लिए बोलते हैं लोग सॉल्ट वाटर से. So, first thing is when you get up in the morning, you drink water, and then if you are a professional voice user, do some good stretches, right? So you need to. So when you if you watch cricket, you see players don't directly enter into the ground and start playing cricket. They warm up their body so that they don't get injured. Similarly, if you are a professional voice user, make sure you are exercising before you start rehearsing, or maybe you start your day if you are a teacher. So make sure you have a good stretching to your neck, and then we tell you some vocal exercises to perform, and then you perform all those exercises and then start your day, right? Then start speaking. So ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. दूसरी सबसे important चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होती है, हम अक्सर क्या करते हैं, when you are a professional voice user, हम यूज़ करते जाते हैं और पानी नहीं पीते. We don't hydrate ourselves. So when we speak to people who have you often get voice issues, वो बोलते हैं सर हम पानी तो 1-1.5 लीटर ही पी पाते हैं, वो भी ध्यान में नहीं रहता. टीचर होते हैं, स्कूल में पढ़ाते रहते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, चिल्लाना भी पड़ता है, ये सब करना पड़ता है. सो मेक श्योर कि हर आधे घंटे 15 से 20 मिनट में आप 1 सिप या 2 सिप पानी का पीते रहें. So make sure your vocal cords are hydrated. So throughout the time, if you are a professional voice user, make sure you carry a water bottle everywhere around, right? वो एक चीज़ आप कर सकते हो. इसके अलावा थोड़ा सा पॉल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, कॉफ़ी और इन सब चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो उसके बाद आप पानी ज़्यादा पीजिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें डिहाइड्रेट करती हैं आपकी बॉडी को, राइट? सो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. एंड देर आर सम मोर थिंग्स, जैसे ग्रीन टी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब आप पी सकते हो. ल्यूकवार्म वाटर पी सकते हो, तुलसी वाले पत्तों वाला पानी पी सकते हो आप. ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को अच्छा फील कराती हैं. इवन सम प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स ऑल्सो हैव टोल्ड मी दैट दे ऑफन फील बेटर व्हेन दे
drink a spoon of honey. They take a spoon of honey or spoon of ghee Okay. before starting their practice. Acha. So this helped them to lubricate their vocal cords, and that's when they feel better, right? Hmm. And how do, like for example, हमने चाइल्ड इंटरवेंशन के बारे में बात करी है, बट इफ लेट्स से किसी को पैरालिसिस अटैक आता है ओल्ड एज में, एंड उसके बाद भी बहुत बार वी हैव सीन की स्पीच लॉस हो जाता है, कोई आप बोल नहीं पाते हो या फिर आप फंबल करने लग जाते, मतलब आप प्रॉपरली नहीं बोल पाते हो, उसमें आपको स्पीच डिलेज होने लग जाता है. सो हाउ डू यू वर्क ऑन दैट, बिकॉज वो एक डिफरेंट केस स्टडी हो जाती है पूरी की ओल्ड एज में एक सीवियर अटैक आया किसी को और फिर वो चीज़ हुई है. तो हाउ डू यू वर्क ऑन दैट? So this condition is called as neurocommunication disorder, and often it is seen after stroke or a traumatic brain injury or a road traffic accident, है ना? So क्या होता है कि अगर स्ट्रोक आया, कोई पर्टिकुलर आर्टरी हो गई, जैसे MC आर्टरी हो गई, IC आर्टरी हो गई, उसमें ब्लड फ्लो जो आपको ब्रेन तक ले जाती थी, जो कि एरियाज ब्रेन में रिस्पॉन्सिबल है स्पीच के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेमोरी के लिए, जो भी आर्टरी उधर ब्लड फ्लो लेके जाती थी वो ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक आया और वो एरिया में ब्लड फ्लो पूरा गया नहीं, ठीक है? तो वो एरिया आपके ब्रेन का डैमेज हुआ, है ना? उधर आपको व्हाट डू यू से, वो एरिया ब्रेन का, हाँ, सो दैट एरिया बेसिकली गेट्स इन्फाक्ट, है ना? सो ब्रेन में आपके इन्फाक्ट आया. इन्फाक्ट आने की वजह से जो आपको बोलना था वो धीरे धीरे आपका बोलना लूज आउट हो गया, मतलब धीरे धीरे क्या, इवन हाथों हाथ आपका बोलना चले गया, इवन अंडरस्टैंडिंग चली गई. एंड सो दिस ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन से ब्रेन के एरिया को अफेक्ट किया गया है. नॉट ऑल स्ट्रोक हैव सिमिलर आउटकम्स. सो सम स्ट्रोक द पेशेंट, दिस पर्टिकुलर कंडीशन आफ्टर स्ट्रोक द पेशेंट लूजेस स्पीच इज कॉल्ड aphasia. ओके. It's called aphasia. Aphasia is a neurogenic language disorder. Okay, so इसमें क्या होता है कि patient loses the language. Language can be understanding of language or speaking of language. Okay. Both can be gone, right? Okay. So इस पर्टिकुलर केस के अंदर यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन. इधर आपका सिर्फ बोलना गया है, देन वी कॉल इट एज ब्रोकाज अफेजिया. अगर अंडरस्टैंडिंग भी गई है तो वी कॉल इट एज वर्निकेज अफेजिया. एंड अगर सिर्फ नाम बोलने में दिक्कत हो रही है, बाकी सब तो बोल ले रहा हूँ, बट किसी भी चीज़ का नाम बुलाता हूँ, नेमिंग डिफिकल्टी है, यानी मैंने पूछा ये क्या है, तो दे आर नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? इनको पता है अंदर से कि क्या है, बट वो नाम आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन इम्पेयर हो गया है ना? तो इस कंडीशन को अनोमिक अफेजिया बोलते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अफेजिया. अगर सब कुछ ही हैम्पर हो गया है, मतलब इतना सीवियर स्ट्रोक था कि सब कुछ ही हैम्पर हो गया है कि अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कॉग्निशन भी नहीं है, स्पीच भी नहीं है, नेमिंग भी नहीं है, राइटिंग भी नहीं है, सब कुछ चले गया है, तो इसको ग्लोबल अफेजिया बोलते हैं. तो इस कंडीशन में स्ट्रोक में क्या होता है, फर्स्ट 2 months और मैक्स टू मैक्स 2 to 3 months आर एक्सट्रीमली क्रूशियल, जब आपकी ब्रेन की प्लास्टिसिटी हाई होती है ना? यानी कि जैसे ही स्ट्रोक हुआ है, पहले 2 से 3 महीने में जो इम्प्रूवमेंट आता है वो मैक्सिमम आता है ना स्ट्रोक के केस में. तो इस कंडीशन में आप पहले 2 से 3 महीने में थेरेपी पे जाओ और जल्दी से जल्दी, चाहे, क्योंकि स्ट्रोक आने से सिर्फ स्पीच, लैंग्वेज और यही नहीं जाता, आपके पैरालिसिस भी आता है, राइट? सो ईदर यू गेट पार्शियल पार्ट ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड और अ कंप्लीट बॉडी पैरालाइज्ड, है ना? सो आप फिजियोथेरेपी भी पहले 3 महीने मैक्सिमम करवाओ, आप स्पीच थेरेपी भी मैक्सिमम कराओ और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी मैक्सिमम कराओ, एंड यू विल सी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट टाइम. अगेन अर्ली इंटरवेंशन आई एम फोकसिंग ऑन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन एनी कैटेगरी. ओके. सो कोई सी भी कैटेगरी है, उसमें जितना जल्दी आप करोगे ट्रीटमेंट, द बेटर द जल्दी एड्रेस प्रोग्नोसिस करोगे आप तो प्रॉपर्ली हो जाएगा. Yeah. ओके. सो अगेन स्ट्रोक आने से सिर्फ स्पीच और लैंग्वेज पे ही फर्क नहीं आता, स्वॉलोइंग कंप्लीटली इम्पेयर हो जाती है. यानी जो मरीज है उसको निगलने की दिक्कत आ जाती है और उसके नाक में नलकी लग जाती है. नाक में नलकी लगने के कई कारण होते हैं. स्ट्रोक ही नहीं होता, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है, कई चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप मुंह से खाना नहीं खा पाते हो, खाते हो तो ठसका लगता है या छाती की तरफ जाता है और आपको खांसी आती है और आपकी सांस एकदम से जाने लगती है, राइट? तो उस कंडीशन में नाक पे नलकी लग जाती है और नाक से आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं, बट ये चीज़ें कंप्लीटली क्योर हो जाती हैं. यानी स्पीच थेरेपी, जिसे हम स्वॉलोइंग रिहैबिलिटेशन के अंडर में करते हैं, स्पीच थेरेपी, उसमें हमें ऐसे ऐसे पेशेंट मिले हैं जिनको 5 साल से पेग ट्यूब पे डाल रखा था. पेग ट्यूब यानी नाक पे भी नहीं, ऑपरेशन करके पेट में Okay. सर्जरी के थ्रू ट्यूब लगा रखी थी, उनको पेट से खाना दिया जाता था 5 साल से, एंड
सब कुछ उनका पेट से ही मतलब कि उससे ही चल रहा है. एंड विद द हेल्प दे नेवर न्यू देयर समथिंग कॉल्ड स्वॉलोइंग रिहैबिलिटेशन या स्पीच थेरेपी, जिससे इनको मुंह से खिलाया जा सकता है कभी, है ना. एंड देन दे केम टू अस. इट टुक अस सम टाइम बिकॉज 5 साल पुराना केस था. एंड नाउ द पेशेंट इज डूइंग सो वेल, है ना. तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं, अगर ये राइट एज पे आते हैं तो हार्डली फ्यू सेशंस एंड द पेशेंट सब कुछ मुंह से खाने लग जाता है वापस. तो अगर आपके नाक मुंह से खाना हैम्पर हो गया है तो डेफिनेटली स्पीच थेरेपिस्ट को आपको विजिट करना चाहिए. आई थिंक दैट माइट बी अ ग्रेट हेल्प बिकॉज फूड इज एन इमोशन इन इंडिया, राइट. कि सोशलाइज करना है तो भी खाना चाहिए. अपन यहाँ पे बैठे हैं, डाइट कोक है, ग्रीन टी है, सब कुछ है. सो इट्स एन इमोशन टू अस इन इंडिया. आप कहीं पे बाहर खाना खाने भी जाते हो तो यू एंजॉय मोर देन अ टेस्ट. इट्स लाइक अ गैदरिंग टू अस, राइट. तो अगर आपका खाना ही छिन जाता है तो आपकी लाइफ से सब छिन जाता है, राइट. So especially if you have a swallowing impairment, definitely you should visit a speech language pathologist. इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब विंड पाइप में खाना जा रहा होता है या फिर विंड पाइप में खाना जाने pipe में लग खाना जाता जा है. रहा होता है बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है कि जब भी हम कुछ भी खाएंगे या थूक निकलेंगे, हम तब सांस नहीं ले सकते. आप खुद भी ट्राई कर सकते हो. जब आप थूक निकलोगे आप सांस नहीं ले सकते, ठीक है. क्यों होता है? हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारा विंड पाइप ओपन होता है ना. वोकल कॉर्ड्स ओपन होते हैं, हवा सांस के लिए जाता है. बट जैसे ही हम थूक निकलते हैं हमारा विंड पाइप क्लोज हो जाता है ताकि खाना सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस में जाए, यानी पेट में जाए, गलती से भी विंड पाइप की तरफ ना जाए. तो इसके मल्टीपल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में कि अगर बाय चांस चला भी गया, हमें बड़े लोग, बुजुर्ग लोग काफी कहते हैं कि बात करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए. सो मे बी दे डोंट नो द रीजन, मे बी दे आर जस्ट कमेंटिंग ऑन कि वो खांसी आ जाती है, राइट, ठस्सा लग जाता है. तो अगर आप बड़े बुजुर्ग के सुनोगे कि कभी भी खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, तो उस इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि बात करते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, राइट. वोकल कॉर्ड्स हमारे विंड पाइप के ठीक ऊपर बैठते हैं. तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो ये वोकल कॉर्ड ओपन हो जाता है और चांसेस हैं कि खाना इसके थ्रू विंड पाइप में जा सकता है. और जैसे ही विंड पाइप में गया, हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बॉडी का क्या करता है, इमीडिएटली खांसी आती है, आंखों से पानी आने लगता है और तब तक हम खांसते हैं जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता. कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारे विंड पाइप में गई, ट्रेकिया में गई, let it be dust or any kind of a thing, it reacts immediately and we cough it out and bring it out, right. इनवॉलंटरी एक्शन है ना, पर ये बेसिकली अपने कंट्रोल में नहीं होता. हाँ, ये सब कॉन्शियसली चल रहा होता है. सब मतलब यस कि अपने आप होता है. तो फिर हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मतलब किसी भी थेरेपी के थ्रू? किस चीज को कंट्रोल कैसे कर जैसे सकते स्वॉलिंग का इशू हो रहा है, हाँ, आपको अटैक आया, कुछ भी हुआ, उसके तो बाद स्वॉलिंग का इशू हुआ क्यों? क्या आपके वोकल कॉर्ड पैरालाइज हुए? क्या आपके एपिग्लॉटिस का मूवमेंट खराब हुआ? क्या आपके हायोलैरेंजियल एक्सकर्शन खराब हुआ? तो देयर कैन बी मल्टीपल, स्वॉलोइंग की मल्टीपल स्टेजेस होती है. पहली चीज होती है ओरल फेस. ओरल फेस क्या होता है कि आपने मुंह के अंदर खाना डाला, उसके बाद आपने चबाया, जीभ के थ्रू पूरा घुमाया खाने को और फिर जीभ से पीछे पुश किया फेरिंग्स में, राइट. ओरल फेस में क्या होता है, आपने खाना खाया, मुंह के अंदर डाला, चबाया, मैस्टिकेट किया और उस खाने को टंग से प्रोपेल किया पीछे की तरफ, खाने को फेरिंग्स में भेजा. खाना जब फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से धीरे धीरे आया लैरेंजियल एरिया में, फेरेंजियल मूवमेंट के बाद आया लैरेंजियल एरिया में, लैरेंजियल एरिया से जाकर वो गया इसोफेगस एरिया में जहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट हुआ और फिर खाना नीचे गया स्टमक में, राइट. तो अब ये 4 स्टेजेस के थ्रू जाता है. अब मुंह के अंदर अगर आपके ओरल स्टेज में ही प्रॉब्लम है, अगर मान लो आपको टंग कैंसर था, आपके जीभ में कैंसर था और आपकी पूरी जीभ काट दी गई, सर्जिकली रिमूव कर दी, ग्लॉसेक्टमी हो गई या पार्शियल जीभ उठ गई, अब आपको प्रोस्थेटिक जीभ लगा दी, आर्टिफिशियल जीभ लगा रखी है. अब आर्टिफिशियल जीभ तो लगी हुई है पर उसका मूवमेंट ही नहीं है. अब आप खाना खाओगे भी तो आप खा ही नहीं सकते, आप उस खाने को पुश कैसे करोगे पीछे. सो यू हैव अ रोल एट एवरी स्टेज, ठीक है. तो हर एक स्टेज मैटर करती है. यूजुअली न्यूरोलॉजिकल केसेस में लैरेंजियल और फेरेंजियल फेज ऑफ स्वॉलोइंग अफेक्ट होता है ड्यू टू मसल वीकनेस, राइट. सो वो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, कोऑर्डिनेशन बेस्ड एक्सरसाइजेस होती हैं और कुछ मैन्यूवर्स होती हैं जिसकी वजह से आपको सेफ स्वॉलो कराया जाता है और आप फिर से मुंह से खाने लग जाते हो सारी चीज़ें, ठीक है. इट्स अ, बिलीव मी, इट्स सच अ फीलिंग व्हेन यू सी अ पेशेंट और वो कुछ नहीं खा सकता होता और उसको 5 दिन की या 10 दिन की या 15 दिन की थेरेपी के बाद सब कुछ ओरल खिलाने लगते हो, जो वो आपको ब्लेसिंग्स देके जाता है, जो फीलिंग आती है उसके बाद, दैट यू आर एबल टू क्योर समबडी इन सच अ वे, राइट.
तो उसके लिए सब कुछ मिल गया, राइट? या चाइल्ड में भी करते हो ना ये वाली थेरेपी से? हाँ, बच्चों में भी होती है। बच्चों में भी मोस्टली इट इज ड्यू कंजेनाइटल फैक्टर कि बाय बर्थ ही मसल वीक थी, सेरेब्रल पैल्सी था, कंप्लीट बॉडी पैरालिसिस था, या सेंसरी रीजंस भी होते हैं बच्चों में जिसकी वजह से स्वॉलिंग इश्यूज आते हैं। मतलब किसी पेरेंट के लिए दे मस्ट बी थिंकिंग कि इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव, और सो व्हाट डज दीज थेरेपीज कॉस्ट? So definitely rehabilitation is very expensive. So it is expensive because it is required for a long time, right? And it is required regularly. So if I talk to you, at our center we charge 13,000 rupees for 20 sessions. Okay. So it would come up to 650 rupees per session, and each session is approximately 45 minutes. So, but trust me, the effort that we put, actually the similar effort that you see into other countries. If I talk to you about United States, each 45-minute therapy session costs you $100. That is 9,000 rupees. Is it like 650 per session is the cost for every therapy, or like हर child intervention के लिए it's different? And So yeah, it is completely different for each therapy. The charges are different. But for speech therapy and occupational therapy, these are the charges: 13,000 rupees for 20 session for speech therapy. And if somebody wants speech therapy for so if somebody wants occupational therapy, again 13,000 for 20 sessions. If somebody wants just a single session, we charge 800 rupees for single session. तो आपने बताया कि hearing aids and आजकल implant भी हो जाता है, so that a child जिसको बचपन से ही सुनने का मतलब the child is born deaf, तो they can hear and like it has been catered, right? Right. So what all things other than this is in the market and which people should know about? So yes, hearing aids are there for everybody, from pediatric to again to older adults. So छोटे बच्चों के as young as 6-month old child, we have fitted the hearing aid. So first thing that we do is we find at the birth if the child is hearing or not. After screening, we run a detailed evaluation and confirm if the child is having a hearing loss or not. And then once it is confirmed, first thing that we do is we put the hearing aid to the child. Now why to put hearing aid to the child at such young age? So first thing we need to understand is that the child starts hearing in the mother's womb, right? So when the mother is pregnant, by 5 months, right, the child develops all the ears, right? So the child develops the ear, and the child is able to hear in the mother's womb. So a lot of time बोलते हैं बच्चा लात मार रहा है, आवाज करो तो लात मार रहा है. Yes, because बच्चा सुन रहा है, right? So the 4 months of hearing in the womb, and then the later in the coming life 6 months, already 9 months the child is delay compared to the normal developing child, right? So our intention is कि जितना जल्दी बच्चे को सुनने को मिलेगा उतना ही नॉर्मल उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम इस एज को मिस आउट कर जाते हैं, बच्चे का पता ही नहीं पड़ता कि उसको सुनने में दिक्कत है, क्योंकि बच्चा छोटी एज में विजुअल लर्नर होता है, यानी वो हर चीज़ देखकर सीख जाता है ना? तो बाद में बच्चों के माँ बाप आते हैं कि बच्चा बोल रहा क्यों नहीं है, सब काम करता है पर ये बोलता क्यों नहीं है, एंड देन वी फाइंड आउट कि बच्चे को तो सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोलता ही नहीं है कुछ भी, राइट? तो बच्चा वो बोलते हैं पापा मामा तो बोल देता है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता. तो पापा और मम्मा में क्या होता है, बच्चा विजुअल क्यू से सीख जाता है. बच्चा लिप रीड करता है, बोलता है पापा के भी होठ 2 बार हिले तो मैं भी हिला देता हूँ पापा, है ना? तो पापा शब्द निकल जाता है, राइट? सो कुछ वर्ड्स तो वो एक आध वर्ड्स तो बोलने लग जाता है, बट लेकिन उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होती. बट इमेजिन कि बच्चा माँ के पेट में सुनने लग जाता है, और अब हमें पता पड़ा है कि बच्चा 4 साल का हो गया पर अब नहीं सुनता, या 5 साल का हो गया और अब हमें पता पड़ जाता है, तो बच्चे का ब्रेन तो पूरा ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है. तो अब अगर हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का जो लैंग्वेज की एज थी वो भी निकल गई है, सारी चीज़ें निकल गई हैं, तो अगर अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो अब हमारे लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है. हम कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं, बट आउटकम की कोई गारंटी नहीं ले सकते, राइट? कि अब वो सुनेगा भी तो क्या उसको समझ में आएगा, या वो लैंग्वेज डेवलप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. रिमेंबर आई टॉक अबाउट ब्रेन प्लास्टिसिटी, ब्रेन मैलिएबल होता है जितनी छोटी उम्र में होता है. तो हमारे जो ब्रेन में होता है, हर चीज़ का अलग एरिया होता है.
So when I talk about understanding, there is Wernicke's area in the brain. Auditory cortex में क्या होता है, हम सुनते हैं और समझते हैं. वैसे ही विजुअल कॉर्टेक्स होता है जिसकी मदद से हम देखते हैं और जज करते हैं आसपास की चीज़ें क्या है. वैसे ही हम स्मेल करके ये पता लगा पाए कि ये खुशबू है या बदबू है, इसके लिए अलग एरिया है ब्रेन में. टच करके ये पता लगा पाए गर्म है या ठंडा है, अलग एरिया है ब्रेन में. तो जब हमें सुनाई नहीं देता था तो ब्रेन में जो सुनने वाला एरिया है, समझने वाला एरिया है, उस तक तो कोई आवाज़ ही नहीं गई, उस तक तो बात पहुंची ही नहीं, न्यूरॉन्स उस तक गए नहीं. तो ब्रेन क्या करता है, जो चीज़ यूज़ में नहीं आ रही तो वो धीरे धीरे धीरे, अब उसको ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, तो वो ब्रेन क्या करता है, पास वाले एरिया की हेल्प लेता है जो कि पास में है विजुअल कॉर्टेक्स. तो ब्रेन क्या करता है, विजुअल कॉर्टेक्स को डोमिनेंट बना देता है कि अब तू सामने वाले के होठ पढ़, चाल ढाल पढ़, हाव भाव देख, साइन एक्शन देख कि वो क्या कर रहा है और उससे समझने की कोशिश कर, क्योंकि तू खुद तो समझ नहीं पा रहा सिर्फ सुनकर. तो अब तू दूसरी चीज की हेल्प ले. तो ब्रेन में जो समझने वाला एरिया है वो तो धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाता है, ओके, अट्रोफी होने लग जाती है उस पार्ट की, और उसको ओवरटेक करता है विजुअल कॉर्टेक्स. धीरे धीरे विजुअल एरिया उसका एरिया कवर करने लगता है, और एक बार अगर विजुअल एरिया ने उसको कवर कर लिया देन वी हैव नथिंग टू डू, क्योंकि ब्रेन में अंडरस्टैंडिंग वाला एरिया ही श्रिंक आउट हो गया. तो अब हम चाहे कितना ही महंगा इम्प्लांट लगा दे या कितनी ही महंगी हेयरिंग एड लगा दे, अब हम बच्चे को ना सुनवा सकते हैं ना बुलवा सकते हैं, बिकॉज सब कुछ ब्रेन में छूट चुका है. सो वी हैड अ पेशेंट 9-year-old, है ना, हु केम टू अस सेइंग दैट कि ये सुनती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है, और इसके लिए अब हमने मशीन लगवाई है. दूसरी जगह से दे गॉट द हियरिंग एड डन. सो अगर प्रफाउंड केस होता है यानी 100% डेफनेस होती है तो यूजुअली हियरिंग एड्स वर्क नहीं करते, है ना. उस केस में हमें इम्प्लांट यानी ऑपरेशन कराना पड़ता है, राइट. तो 5 से 6 साल के बाद ऑपरेट भी नहीं करते, क्योंकि पता है कि कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, ब्रेन में वो एरिया श्रिंक आउट हो गया होगा. ओके. तो अब उसकी इम्प्लांट की एज तो निकल गई. अब उसने 9 साल की उम्र में जाके हियरिंग एड लगाया ताकि वो सुन सके, समझ सके और बोल सके. तो वो आई थेरेपी के लिए कि हमने मशीन तो लगवा दी, अब आप हमारी स्पीच थेरेपी करवा दीजिए. तो ये बोले, तो हमने पूछा कि आपको कब पता पड़ा था कि इसको सुनने में दिक्कत थी. तो बोले कि उसको है ना, जब ये 2 साल की थी तब हमें पता पड़ गया था. मैं बोला आपको तब किसी ने कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए नहीं बताया? तो बोले हमें बताया था, हम गए भी थे 1-2 सर्जन्स के पास, हमने कॉक्लियर इम्प्लांट, बट हमारे एक बाबा हैं वो कहीं पे रहते हैं, है ना. तो इसके क्या है, सिर्फ कान की ही दिक्कत नहीं थी, इसकी बैकबोन में भी दिक्कत थी. इसकी बैकबोन थोड़ी सी कुछ दिक्कत बताई कि कर्व थी और कोई और ही प्रॉब्लम थी, बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी. तो ये ना बैठ पाती थी ना ये चल पाती थी, छोटी सी 2 साल की. तो उन बाबा ने ही कुछ चमत्कार किया और उन बाबा ने कुछ हाथ वाथ फिराया और कुछ किया तो इसकी बैकबोन सही हो गई, है ना. तो उन बाबा पे तो हमारे को पूरा विश्वास है, एंड अभी तक दे हैव एवरीथिंग डिवोटेड टुवर्ड्स दैट बाबा, है ना. तो बाबा ने बोला था कि जब ये 9 साल की हो जाएगी ये बोलने लगेगी, है ना. तो आप कुछ मत कराओ, ये सुन भी जाएगी, बोल भी जाएगी जब ये 9 साल की हो जाएगी. तो दे लेफ्ट एवरीथिंग एंड देन दे वेंट टू दैट बाबा. दे यूज्ड टू ऑफन विजिट दैट बाबा. जब बच्ची 9 साल की हुई तो मिलने गए तो बाबा थे ही नहीं, बाबा वो पास आउट, ठीक है है ना. तो बाबा काफ़ी एज ज़्यादा थी बाबा की, तो बाबा वॉज नो मोर, है ना. तो देन दे इवेंचुअली थॉट कि अब तो हियरिंग एड लेना चाहिए, एंड वो हियरिंग एड कहीं से खरीद के आए और फिर उन्होंने स्पीच थेरेपी कराई. अब स्पीच थेरेपी में हमें पता है कि उसको समझ में नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा, और हाँ, स्पीच थेरेपी में हमें पता है कि उसको सुनाई भी नहीं देगा क्योंकि उसके ब्रेन में वो एरिया ही श्रिंक हो चुका है और समझ में भी नहीं आएगा और वो बोल भी नहीं पाएगी, है ना. बट लेकिन उसके पेरेंट्स को काउंसिल करना इतना डिफिकल्ट था क्योंकि बाबा ने बोला ये 9 साल की उम्र में बोल जाएगी, ठीक है. Then somehow with the visual cues we made her speak more than 20 words, ठीक है, जो कि इतने क्लियर नहीं थे क्लियरिटी में, बट लेकिन 20 वर्ड्स वो बोलने लग गई. एंड देन वी कॉल्ड हर आफ्टर 3 months टू डिस्कस प्रोग्रेस, क्योंकि उस बच्ची के मम्मी पापा नहीं थे, आई थिंक वो अडॉप्टेड किड थी, उसकी मासी लेकर आती थी उसको, है ना. तो वो बोले, मासी बोली देखा सर मैंने बोला था ना बाबा की बात एकदम सही है, देखा ये 20 शब्द बोलने लगे. ओके सो still now they have all the belief and everything into that. So that is one part कि इंडिया में एज को लेकर लोग इतना सीरियस नहीं होते कि यार अगर राइट एज निकल गई तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, है ना. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लॉट ऑफ टाइम हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि यार आपको
दो साल की उम्र में पता पड़ गया था बच्चा बोलता नहीं है, तो आप क्यों नहीं लेकर आए सुनाई का चेक कराने या फिर ये दिखाने की बोलता नहीं है? अरे इसके दादा दादी बोलते हैं कि अरे इसका तू कौन सा टाइम पे बोला था, है ना, तू भी 5 साल की उम्र में बोला था, तू भी। लॉट ऑफ टाइम ग्रैंड पेरेंट्स मिसलीड इट और मे बी however it is. I have heard this कि चिड़िया का पानी पिलाओ इसको जल्दी बोलने लग जाएगा। अगर कोई बच्चा बोल नहीं रहा है चिड़िया का पानी पिलाओ, चिड़िया को जो पानी पिलाते हैं वही कप से उसको पानी पिलाओ तो ये बोलने लग जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट थिंग दैट पीपल कम अप विद, ठीक है। तो एक्चुअली जिसको प्रॉब्लम होती है ना, वो दुनिया में हर चीज करवा के देखना चाहता है, बट वो उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता है, ठीक है। अब सपोज देयर इज अ स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक हुआ है। अब स्ट्रोक के लिए भी है ना, मेरे को नाम याद नहीं है, बट जयपुर के आसपास काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर भगवान के मंदिर हैं और वहाँ पे स्ट्रोक के लिए स्पेशली जगह बनी हुई है कि आप वहाँ पर जाओ तो आपका ये जो सारा लकवा है ये दूर हो जाता है और बोलने भी लग जाता है आदमी वापस, और ये सारी चीज़ें हैं। और ये इतनी ज़्यादा लेवल पे बड़ी हैं, तो क्या होता है स्ट्रोक में, मैंने बोला फर्स्ट 2-3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बॉडी क्या है, ब्रेन अपने आप भी रिकवरी करता है, सेल्फ रिकवरी बहुत होती है। तो अब ये उस एनवायरनमेंट में जाते हैं, भगवान के भजन सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, तो एक तो एनवायरनमेंट मिला और सेल्फ रिकवरी ब्रेन ने करी। अच्छा चमत्कारी बाबा ने किया है, ठीक है। सो दैट हैपेंस कि ये चमत्कार ऐसे हुआ है। सो लॉट ऑफ टाइम देयर इज मिसकंसेप्शन, इवन दो पीपल आर अवेयर कि इससे नहीं हो रहा है, बट दे स्टिल वांट टू गो बिकॉज दे डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग। हम झाड़ा भी लगवाएंगे, हम बाबा के पास भी जाएंगे, हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे, हम होम्योपैथिक के पास भी जाएंगे, हम आयुर्वेदा के पास भी जाएंगे, बट मेरे बच्चे के लिए मैं हर चीज करेंगे जो हमें पॉसिबल है। बट लॉट ऑफ टाइम्स दे ओनली डिपेंड ऑन द टर्शरी थिंग्स, राइट। प्राइमरी को वो इग्नोर करने लगते हैं कि शायद ये तो गलत है, और मेन चीज वही है शायद बाबा का झाड़ा ही हमारे को सही। स्पेशली द पेशेंट्स यू आर डीलिंग विद, उनके बिकॉज इट इज वेरी स्टीरियोटाइप से बहुत ज़्यादा होता होगा, बिकॉज दे आर वेरी ऑटिस्टिक भी है कोई, तो इनिशियली लगता है कि यार इसको कोई प्रॉब्लम होगी, झाड़ा वाड़ा लगवा लेते हैं। तो आपके वाले फील्ड में जिन पेशेंट से आप डील कर रहे हो उसमें तो बहुत ज़्यादा होता होगा स्टीरियोटाइप्स। अरे मैं ऐसे ऐसे चीज़ों की बात बता रहा हूँ। यूट्यूब पे देयर इज वन गाय, इंस्टाग्राम पे भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ही इज अ वेरी फेमस, ही हैज गॉट सो मच ऑफ व्यूज एंड यूट्यूब पे बाबा नहीं है, he tells himself as a professional, okay, and he hosts free camps into villages. Now he holds paid camps and all of that. okay. तो ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, फुल बॉडी पैरालिसिस और ये सब। अच्छा, आप अपने बच्चों को थेरेपी सेंटर पे लेके जाते हैं, फिर भी आपका बच्चा सही नहीं हुआ, इधर लेके आइए अपने बच्चे को, लेटाइए, अब अपने बच्चे के पीठ पे एस बनाइए और ये टी शर्ट हटा के एस बनाइए, अब देखना ये 3 दिन बाद कैसा करेगा। एंड देयर आर पीपल टू लाइन वेटिंग फॉर हिम। अच्छा, आपका बच्चा बोलता नहीं है, ये स्क्रीन देना छोड़ दी, कुछ तो लेमन बोलते हैं, ठीक है, कि स्क्रीन देना बंद कर दीजिए। अच्छा, अगर बोले नहीं तो सर पे 10 बार ऐसे मारिए, ठक 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 ठक, फिर देखना इसकी स्पीच कैसे डेवलप होती है। सो पीपल आर ब्लाइंडली बिलीविंग इट। यू कैन सी यार, इंस्टाग्राम पे आजकल एजुकेटेड आदमी इंस्टाग्राम चला रहा है ना, और यूट्यूब चला रहा है। यूट्यूब पे ऐसे लाखों की फैन फॉलोइंग बन रही है कि तुम कुछ भी बोलो। सो देयर इज लॉट ऑफ क्रिंज कंटेंट एंड लॉट ऑफ बैड कंटेंट, सो यू शुड मेक श्योर कि तुम क्या देख रहे हो। दैट मैटर्स अ लॉट कि व्हाट यू आर वाचिंग, बी वेरी माइंडफुल। सो देयर इज वेरी गुड कंटेंट अराउंड ऑन द इंटरनेट, देयर इज वेरी misleading content on the internet, so make sure you don't get distracted into something which is not real. So I believe क्या भाई उसने में चमत्कार किया, एक बंदी खड़ी बोले सर में दर्द है मेरे, बोले यहाँ बच्चा यहाँ अब नहीं जा, बट है अभी भी हम मेरे देखा। और वो एक वो गन जिससे आवाज आती है वो सब भी करते हैं, वैसे ऐसे गन से आवाज आ रही है और वो वहाँ पे नाच रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। एक्चुअली अब क्या है, हर जगह बिकॉज ऑफ चीप डेटा, तो गाँव में भी हर जगह आपके पास डेटा अवेलेबल है, ऑनलाइन आप इंस्टाग्राम पे हो, और जब आप अवेयर नहीं हो लेकिन आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो देयर बी पीपल हु विल मिसलीड यू। तो आपको पता ही नहीं क्या देखना है, एंड कंटेंट इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है अभी कि यू नीड टू, पहले ऐसा था कि यू नीड टू सी कि क्या अच्छा कंटेंट है, अभी के टाइम पे यू नीड टू नो कि क्या खराब है और उसको नेग्लेक्ट करो। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या नहीं देखना है। राइट, दिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बी वेरी माइंडफुल ऑन दैट। या what are parents doing wrong which is affecting the holistic development of their child, so that they can also take care from this episode, they can also learn and know something कि हमें ये नहीं करना है, so that the child can have a better development. Right. So I would say the child is reflection of their parents, right?
So if you want your child to do something, so suppose if you want your child to read a book, so make sure you read a book, right? So you cannot tell कि यार तुम्हें 2 घंटा book read करना है या novel read करनी है, वो आपकी habit क्या है? So suppose if you are messy, your child is gonna be messy, right? So if you are on the phone throughout the day, your child will demand for a phone, right? Your child wants a screen because you are busy throughout the day. So first and most important thing I would say, keep, please start spending time with your child and don't leave it for the mother always. Make sure that father has a equal and important role in the child's development. Lot of time we see that every time the dad is like ये घर पे बच्चे के साथ रहती है, मैं तो बाहर ही रहता हूँ. That doesn't make any sense. Even if you have 1 hour, spend quality time with your child. Quality matters, quantity doesn't matter. We always tell to the parents, quality always beats the quantity. So lot of time the parents say कि हम बहुत टाइम, हम सुबह से शाम तक बच्चा तो मेरे साथ ही है, फिर क्यों नहीं बोलता ये? तो बच्चा साथ में रहना और बच्चे के साथ समय बिताना और क्वालिटी टाइम बिताना, इसमें बहुत अंतर है. सो स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर चाइल्ड. इफ यू वांट दैट योर चाइल्ड शुड हैव डजंट हैव बिहेवियरल इश्यूज, योर चाइल्ड शुड बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स, द चाइल्ड शुड स्पीक माइंडफुली, देन you should also start speaking mindfully. You should make sure the surrounding that you have, the ambience that you have in your house, the culture that you have in your house, that should be very right for the child who is developing at that age. So I have seen children speaking bad words, the language is so bad, even for a 4-year-old child. Then we come across the parent is using the same at home, right? So make sure, always remember, the child is hearing and understanding everything what is happening around him or her, right? So it makes a lot of difference if you curate, or if you have a good culture around the child. Similarly the child will develop, right? Okay, this one has been very insightful. मैंने तो बहुत सारी चीज़ें लिख भी ली हैं, but any signing off notes from your side? So I would say don't take the whatever we spoke around, don't take these things so seriously. Child development is fun, and it's not so difficult as you all are thinking. So developing a child is totally fun. Try to be more engaging, try to be fun, and try to involve your child into all the spaces around, and involve your child into all activities. As well as if you find out that there is any problem in terms of any kind of development, reach out to the professional as soon as you can, and definitely there's a solution.